السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے؟ تاخیر کے لیے معذرت۔ جی جی آ رہی ابھی شروع ہوا، شروع کر رہے ہیں اب الحمدللہ۔ جی شیخ عبدالرحیم صاحب، بچے حاضر ہیں وہاں پہ؟ تھوڑا ویڈیو کھولیے۔ حافظ صاحب ہیں وہاں پہ، عبدالصمد صاحب، آج انہی کا نام ہے۔ تو پہلے بول دینا چاہیے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اور اعلان بھی کہیں نہیں دیکھا ہوں، تو یار یہ عبدالصمد آ جاؤ تلاوت کی۔ ٹھیک ہے آ رہا ہے۔ اصل پہلے سے بولنا چاہیے، میں رات بھی اعلان نہیں دیکھا، آج بھی نہیں دیکھا ہوں۔ ہاں میں بھیج دیا تھا، میں سمجھا شاید دیکھ لیے ہوں گے۔ نہیں، میں تو مقصد حیات میں دیکھا، اعلان تھا ہی نہیں۔ نہیں ڈالا تھا رات میں، شاید ڈالا تھا۔ شاید والی بات ہوگی نا۔ میں تو ابھی بھی چیک کیا تو دیکھا نہیں ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ہر ایک میں ڈالا ہوں تو۔ اچھا، اس میں فیس بک میں اور اس میں جو ہے، اور اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، میسنجر میں تو میں پورے مکمل میں ڈالا ہوں، بہت تقریباً 100-150 لوگوں کے پاس۔ ہاں، لیکن میں جو ہے اس میں دیکھ رہا تھا کہ مقصد حیات میں ہوگا، کہیں نہ ملے تو کہیں نہ گزرے تو کم سے کم مقصد حیات میں تو ہوگا ہی۔ تو دیکھا اعلان ہی نہیں دیکھا، تو میں جو ہے سمجھا ہو سکتا ہے کسی کا ہوگا شاید۔ اچھا کہاں ہو، آئے کہ نہیں؟ آ گیا تیار ہونے میں کتنا لگتا؟ 10 منٹ لگتا۔ کھولیے ویڈیو کھولیے ذرا دیکھیں۔ اور شکیل صاحب کدھر ہیں؟ السلام علیکم۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ماشاء اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزا آج ٹیکنیکل نہیں نظر آ رہا، آج عبدالکلام ہی دونوں جگہ نظر آ رہے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ، ہمارے احباب سب آ رہے ہیں، تو پھر جب تک ہم قرآن کی تلاوت اور اس کو شروع کریں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ دوستو، ابھی جنگننا ہمارے نیپال میں شروع ہے۔ لوگوں کو اس سے جاگروک کرانا، معلومات فراہم کرانا اور لوگوں کو مکمل طریقے سے جانکاری دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ خاص طور سے جو اہل علم ہیں، ان کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو کس طریقے سے، کس روٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ساتھ ہی جو وہاں کے لوگ، جو بدھی جیوی لوگ ہوتے ہیں، جو جانکار لوگ ہوتے ہیں اور جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ عوام کو اس بات سے آگاہ کریں۔ تو اسی سلسلے کی اس کڑی کو ہم، جو یہ تقریباً پچھلے سال سے ہی ہم نے اس کو شروع کر رکھا ہوا ہے، اور جس میں بڑے بڑے ہمارے کئی مہمانان خصوصی بھی آئے ہوئے ہیں، جس میں شمیم میاں انصاری صاحب جو مسلم آیوگ کے صدر ہیں وہ بھی، اور ذاکر صاحب کو بھی اس سے پہلے میں نے بلایا تھا، اور بہت سارے لوگ بھی اس میں آئے ہیں۔ اور اس چیز کو میں چاہ رہا ہوں کہ تمام مسلمانوں تک اس بات کو پہنچا دوں، اور سب لوگ اس کو جانیں، پرکھیں، دیکھیں، سمجھیں، اور اس طریقے سے پھر اپنا نام اس کے اندر اندراج کروائیں، اپنے بھاشا کا اندراج کروائیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کی ہم دعوت دیتے ہیں حافظ عبدالصمد بن عبدالرحیم مدنی حفظہ اللہ کو، وہ تلاوت قرآن سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ولو شاء لهداكم أجمعين السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کے بعد میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت سخن دوں گا شکیل احمد صاحب کو، وہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ ارشاد۔ جب نبوت کا جلوہ دکھائے نبی، جب نبوت کا جلوہ دکھائے نبی، جب نبوت کا جلوہ دکھائے نبی، خیر کی روشنی کو جگائے نبی، خیر کی روشنی کو جگائے نبی، رہبری ان کی بے مثل ہے مومنوں، رہبری ان کی بے مثل ہے مومنوں، رہبری ان کی بے مثل ہے مومنوں، رحمت عالمی بن کے آئے نبی، رحمت عالمی بن کے آئے نبی، حسن شاق القمر مسکرانے لگا، حسن شاق القمر مسکرانے لگا، حسن شاق القمر مسکرانے لگا، حق پرستی کا گل جب کھلائے نبی، حق پرستی کا گل جب کھلائے نبی، آئے جبریل بھی بدر کی جنگ میں، آئے جبریل بھی بدر کی جنگ میں، آئے جبریل بھی بدر کی جنگ میں، جب ہتھیلی دعا میں اٹھائے نبی،
جب ہتھیلی دعا میں اٹھائے نبی، پاپ کی آگ میں جو پڑے تھے انہیں، پاپ کی آگ میں جو پڑے تھے انہیں، پاپ کی آگ میں جو پڑے تھے انہیں، زندگی بخش نغمہ سنائے نبی، زندگی بخش نغمہ سنائے نبی، نور سن لو یہ کتنی بڑی بات ہے، نور سن لو یہ کتنی بڑی بات ہے، نور سن لو یہ کتنی بڑی بات ہے، خاتم الانبیاء بن کے آئے نبی، خاتم الانبیاء بن کے آئے نبی، جب نبوت کا جلوہ دکھا اے نبی، خیر کی روشنی کو جگائے نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ نیپال میں جنگننا شروع ہے، ہر 10 سال کے بعد یہ جنگننا ہوتی ہے، جس کے اندر ہمارے نیپال میں کتنے پاپولیشن کا اضافہ ہوا ہے، کتنے لوگ یہاں بڑھے ہیں، ان سب کے نام کا اندراج ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بھاشے کا بھی اندراج کیا جاتا ہے کہ بھاشے کے بولنے والے کی کتنی وردھی ہوئی ہے اور کتنے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ چونکہ پاپولیشن اور بھاشے کی بنیاد پہ آپ کو بہت سارے حقوق ملتے ہیں، اور یہ 10 سال کے بعد ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں کیا جاتا۔ تو 10 سال اگر ہم ابھی اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے، جو ہمارے بدھی جیوی لوگ ہیں، جو ہمارے جانکار اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہے نا، اگر ہم لوگ اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے تو پھر 10 سال تک ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ 10 سال کے بعد یہ موقع آئے گا یا نہیں آئے گا، کبھی کبھی کسی نہ کسی بنیاد پہ لیٹ، جیسے اس وقت بھی تاخیر ہوئی ہے 2-3 مہینے 4 مہینے کے لیے، تو اس طرح کی جو تاخیرات ہوتی رہتی ہے، تو 10 سال کے بعد تاخیر ہوں گی یا نہ ہوں گی۔ لیکن ابھی ہم لوگوں کو جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جاگروک کریں، لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں، لوگوں کو جانکاری دیں، لوگوں کو معلومات فراہم کریں کہ ہمیں اس جنگننا کے اندر کیا کرنا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے، نام کہاں پہ لکھنا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے جو دھرم کی جگہ ہے اس میں ہم کیا لکھیں گے، اسلام لکھنا ہے یا مسلمان لکھنا ہے، یہ جاگروک کرنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو ہے بھاشے کے اندر 3-4 قسم کا بھاشا ہے، پٹھیلی بھاشا ہے نا، اسی طرح سے دوسرا بھاشا بھی ہے، دوسرا بھاشا میں کیا لکھیں گے، تو پرکھیلی بھاشا اور جو وہ بھاشا اس کے اندر اردو لکھنا ہے، اور جو دوسرے بھاشا اس کے اندر میتھلی، بنگالی، بھوجپوری یا جو کچھ بھی آپ بولتے ہیں اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ چونکہ جتنے بھی مسلمان ہمارے نیپال کے اندر ہیں، سب کا جو ایک لینگویج ہے، جو بھاشا ہے ایک جگہ کرنے کا، ایک پر اتفاق کرنے کا، متفق ہونے کا، وہ اردو ہی ہے۔ چاہے وہ ہمارے جمعے کے اندر خطبہ ہو، یا آپ کوئی پروگرام کرتے اس میں خطبہ ہو، کوئی جلسہ جلوس کرتے اس کا ہو، یعنی جہاں بھی مسلمان اور ان کی جتنی بھی ہمارے تفاسیر ہے، حدیث ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں، مواد ہمارے سب جو ہے اردو کے اندر موجود ہے۔ اور دوسرے بھاشا میں آنے کے لیے یہ کیا کرتے ہیں، 10 سال لگ سکتے ہیں اس کے اندر، دوسرے بھاشا میں وہ بھی مکمل طریقے سے نہیں آ سکتا۔ اور یہ کئی ملکوں کا بھاشا ہے، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے یہ جو مین بھاشا ہوتا ہے اس کے اندر اردو بھی آتا ہے، اور ہمارے نیپال میں بولنے والے اور جو ہمارا یہ ہے مسلمانوں کا، اور یہ اردو ہی ہے۔ تو اس کے اوپر ہم لوگ کیسے دھیان دیں گے؟ ابھی کچھ لوگ نیپال کے اندر ایسے بھی ہیں، 2-3 لوگوں کا کل نام میرے پاس آیا، بلکہ ذاکر صاحب نے خود ہی مجھے فون کر کے کہا کہ فلاں صاحب جو ہے
وہ اس طرح سے نیپال کے اندر جو ہے ماحول کو خراب کر رہے ہیں اور لوگوں کے اندر زہر پیدا کر رہے ہیں. تو وہ یہ ہے کہ بھائی آپ انہوں نے اردو کو بالکل زد سے ہی نکال دیا ہے نا. انہوں نے دوسرے اپنے میاں بھاشا کو اور بھوجپوری بھاشا اور میتھلی بھاشا بولا لکھنے کے لیے, اردو کو بالکل جڑ سے ہی ختم کر رہا وہ, ہے نا. تو اس کے اوپر کیسے دھیان دیں گے ہم لوگ, کیسے ہم لوگوں کو معلومات فراہم کریں گے, کیسے لوگوں تک ہم پہنچیں گے, کیسے یہ کام ہمارا ہوگا. اسی لیے ہم لوگ 1 سال سے اس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی جو ٹائم باقی ہے اس میں ہم سب مل جل کر کے کام کریں. تو ہمارے संसदीय नेता आज जाकिर हुसैन साहब का स्पीच का दिन था. मुझे लगता है कि अभी तक वो नहीं आए हैं और उनके मोबाइल में मैंने फोन किया, दोनों मोबाइल इसका बंद है. शायद पता नहीं कोई मसला हो या क्या हो, मैं नहीं कह सकता. आज हमारे साथ अभी मोहम्मद बशीर हबीब मदनी साहब जो इस आज के इस सेक्शन के जो है ये सदर भी हैं. तो मैं चाहूँगा, उन्होंने जो है बहुत बेहतरीन तरीके से उस दिन हम लोगों को समझाया था. जब तक जाकिर साहब हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं तब तक मैं चाहूँगा कि शेख बशीर हबीब मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़े और अगर आप कुछ मालूमात हमें फराहम करें तो आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. बड़ी मेहरबानी होगी आपकी. अगर आप चाहें तो अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें. जी कलाम साहब, इनका जो है ऑडियो और वीडियो खोल दें. मोहम्मद बशीर हबीब मदनी हफिज़हुल्लाह. जी शेख, हमें सुन रहे हैं आप? जी शेख की आवाज नहीं आ रही है हमारे, कहीं चले गए हैं. आवाज नहीं कासिम, आवाज खोल के. आवाज बंद है, आवाज बंद है. आवाज बंद है शेख आपकी. बंद है. देखिए कभी कभी मेरी आवाज ही बंद हो जाती है. बहरहाल, तो मैं ये कह रहा था कि शेख बशीर हबीब मदनी साहब हमें शायद सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, मालूम नहीं है. तो कहीं गए लग रहा है, इसलिए यहाँ पर तो है. कोई जवाब नहीं मिला हमें उधर से. जी. चलिए, जब तक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी इंशाल्लाह जुड़ेंगे तो बाद में हम लोग और भी बात करेंगे. जब तक शेख अब्दुल रहीम मदनी हफिज़हुल्लाह, आप जो है इस ताल्लुक से कुछ बताएं कि क्या जरूरत है हमें और जनगणना की क्या जरूरत है. क्योंकि हम लोग जो है बार बार इसके ऊपर बोलेंगे और कहेंगे लोगों को, तभी जाकर के जो कुछ काम हो पाएगा और अच्छा काम होगा इंशाल्लाह. जो कमी बेशी है उसे पूरा करने की जरूरत है. जी शेख. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद. सबसे पहले जनगणना या मर्दमशुमारी क्यों होती है और उस किसे कहते हैं मर्दमशुमारी और उसका फायदा क्या है, उसकी जरूरत क्या है. मर्दमशुमारी का मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर मर्दमशुमारी का मतलब ये होता है कि वहाँ के लोगों की तादाद को मालूम किया जाता है कि कितने लोग हैं, वहाँ के बसने वाले कितने हैं. बाकी लोगों की आवाज को बंद कर दिया जाए. आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है लेकिन दूसरों को भी आ रही है. मैंने कहा सबको बंद कर दीजिए. जी. तो वहाँ की तादाद को, सही तादाद को मालूम किया जाए, मर्द कितने हैं, औरत कितने हैं, और इसी तरह से बच्चे की तादाद क्या है, बूढ़े की तादाद क्या है. तो ये है सब जो है मालूमात फराहम करते हैं. इसी तरह से वहाँ की जुबान, कौन सी जुबान है और कौन सी जुबान बोलने वाले कितने लोग हैं. इसी तरह से उनकी इक्तिसादी हालत क्या है, कितने लोग नौकरी करते हैं,
गवर्नमेंट के जॉब में हैं, कितने लोग प्राइवेट जॉब में हैं, कितने लोग खेती करने वाले हैं, कितने लोग तिजारत करने वाले हैं, कितने लोग बेकार हैं। तो ये सब चीज, सारी चीजों को मालूम करने के लिए जनगणना या कह लें कि मर्दमशुमारी होती है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं ताकि उसके हिसाब से गवर्नमेंट के तरफ से लोगों को सहूलत पहुंचाई जाए और उनको तरक्की मिले, उनकी जिंदगी को आसान बनाया जाए और उनके साथ क्या कहते हैं कि ताउन किया जाए। तो ये सारी चीजें इसलिए जो है मर्दमशुमारी हर 10 साल के अंदर करते हैं कि उसके अंदर जिस तरह से मिसाल के तौर पे आप रख ये हैं और उसके अंदर एहसाइयात मजबूत नहीं है, आपने गिना नहीं, आपके पास 10 मेहमान आ रहे हैं लेकिन किसी ने कहा कि 5 ही हैं, आप 5 का खाना बनाएंगे, 5 का खाना मंगाएंगे, 10 हैं, तो जाहिर बात है वहां शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। या इसी तरह से 20 मंगा लिया, आपने कहा 20 है, सही तादाद मालूम न हो सकी तो आपका वो खाना ज़ाया हो जाएगा। तो इसी तरह से मालूम करते हैं कि कितने लोग हैं, क्या है उनकी हालत, क्या है इक्तिसादी हालत, क्या है उनकी जुबान, क्या है, ताकि उस जुबान को फराहम करे, उनकी इक्तिसादियात को मजबूत किया जाए और उनको हर तरह की ताउन पेश करें। तो सबसे पहले जो भी लोग शुमार करते हैं अमानतदारी से, अगर उसकी जो है हिस्सायात को, मर्दमशुमारी को सही तौर पे शुमार करते हैं और सही तौर पे सही चीज लिखते हैं, तो उससे सबसे पहले क्या है फायदा कि सही तादाद और सही चीज मालूम होगी तो आप सही तौर से उसको सहूलत दे सकते हैं और सही तौर पे उसका ताउन कर सकते हैं। अगर जो है वो सही तौर पे आप न कर पाए तो सही तौर पे उसका जो है क्या कहते हैं ताउन नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहली चीज ये है। दूसरी चीज क्या है कि खास तौर से, यानी एक अमानत वाली बात मैंने बतलाया, दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों के तरफ से जो भी जिस कौम के लीडर हों, जो भी जिस कौम के रहनुमा हों, उनको चाहिए कि यह चीज अपने तौर पे भी कुछ जो है लोगों को लगा करके और सही मालूमात फराहम करें, गलत मालूमात फराहम ना करें, सही मालूमात हो ताकि हुकूमत की तरफ से जो सहूलत हमें मिले उसके मुताबिक मिले और सही मालूमात हुकूमत तक जाए। अभी जो है मुस्लिम के बारे में जो कह रहे हैं कि हुकूमत के पास ये तादाद है और जो है हकीकत में ये तादाद है, ये इसलिए कि हो सकता है हमारे अंदर भी कमी कोताही हो, हमने अपनी आवाज को या अपनी जो है तादाद को सही तौर पे नहीं लिखवाए हों, तो ऐसा भी हो सकता है उनकी तरफ से हो। तो ये सारी चीजें जिस वक्त में जो एहसायात हो उस वक्त में गौर खौज करना चाहिए, लोगों को जागना चाहिए, लोगों को चाक चौबंद रहना चाहिए ताकि हमारे हुकूक हम तक पहुंच सकें, हमारा मुतालबा जो हो वो हमको मिल सके। तो सही तौर पे इस चीज को इस वक्त में रखेंगे तो हो सकता है कि हम उस हुकूक को पा सकें। खास तौर से इस दायरे में आप देखें तो इस दायरे में आप जिस तरह से जो है जुबान की बात आती है, आप जिस जुबान के जानने वाले हैं तो उस जुबान को वेलू, मिसाल के तौर पे अभी जो है स्कूल वगैरह के अंदर कुछ जुबानों को जो है दाखिल करेंगे, चाहे वो जुबान जो है क्या है महल्ली तौर पे हो, सीखने के नाहिया से हो, समझने के नाहिया से हो, तो आपकी तादाद जैसे उर्दू कहते हैं तो उर्दू की तादाद बोलने वाले रहेंगे तो उस हिसाब से आपको स्कूल, सरकारी स्कूल के अंदर भी आपको जुबान की फराहमी होगी। मिसाल के तौर पे जो है टीचर की बहाली, तो ये जो है पढ़ाने वाले कौन होंगे, मुस्लिम कौम में से होंगे, तो उनकी जो है रोजी रोटी लग जाएगी। इसी तरह से क्या होगा कि उस जुबान के पढ़ाने वाले होंगे तो 1 घंटी आपको जो है, चाहे वो किसी पूरे जो है हफ्ते में हो 1 घंटी, या ये है कि जो है मुसलसल 1 घंटी रोजाना हो, जिस नाहिया से हुकूमत मुकर्रर करे उस तरह से, जिस तरह से संस्कृत वगैरह है दूसरी जुबान है उस तरह से जो है उर्दू भी उर्दू जुबान को भी जो है रखी जाएगी। तो ये जो है इसका फायदा होगा। इसी तरह से और भी जो है जैसे रेडियो है, रेडियो में प्रोग्राम होता है तो इस तरह से जो है वो भी प्रोग्राम सरकारी तौर पे जो है कभी उर्दू के अंदर भी जो है जुबान यानी न्यूज वगैरह कह ले या रेडियो पे प्रोग्राम वगैरह कह ले, उस प्रोग्राम का जो है आगाज होगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे मौके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम इस
मर्दुम शुमारी को ये एक आम चीज या ये क्या है छोटा मोटा ना समझें, बल्कि बहुत बड़ी चीज है, उसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। और उससे जो हमारे कौम के अंदर बहुत सारे लोग सही तौर पे आपके तादाद हैं, तो उसी हिसाब से आपको नौकरी मिलेगी हर 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 किस्म के अंदर, हर जो है डिपार्टमेंट में। इसी तरह से जो है आप जो है क्या कहते हैं सियासत में आ सकते हैं, उसी लेवल से आप जो है हर स्कूल के अंदर जो है आप आ सकते हैं। हर तरह से जो है आपको मौका दिया जाएगा, मौका फराहम किया जाएगा। आपकी संख्या क्या है, आपकी जुबान क्या है, आपने नौकरी करने वाले हैं, ये सारी चीजें है या हर इसमें जो है गवर्नमेंट ने उसका जो सहूलत रखा है, चाहे जिस जात पात के हों उनके यहाँ जो है। तो कहने का मतलब ये है कि बिलखुसूस हम मुस्लिम जितने भी हैं, हम जात पात के अंदर न बढ़ करके मुस्लिम कौमियत जो है मुस्लिम का उसमें जो है रखें, कालम में रखें, ताकि हमारी आदत ज्यादा हो। तो उस आदत के हिसाब से मिसाल के तौर पे अभी जो है बोर्ड वगैरह की बात आ रही है कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड की जो है यहाँ भी जो मान्यता दी जाए। तो क्यों दी जाए? इसलिए कि उसकी आप जो है बतलाएंगे कि हमारी तादाद ये है और इतने बोलने वाले हैं या इस तरह से हैं, हम लोग ये जो है तालीम हासिल करते हैं, इस तरह से जो हमारी जुबान ये है, हमारी तादाद ये है, सहूलत मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हम हर तरह से इत्तेफाक, इत्तेहाद वगैरह का मुजाहरा करें। और इसके अंदर खास तौर से जो है यानी बहुत सारे लोग जो अलग अलग बढ़ जाते हैं, इसमें नहीं बढ़ना चाहिए, खान, पठान, अंसारी और दूसरे फला फला, इस तरह से नहीं, बल्कि एक इत्तेहाद के साथ इसकी अहमियत को, इसकी अफादियत को जानते हुए इस चीज को लिखाएं। और जो रहबर हैं इस वक्त के अंदर, वो लोग जो है लोगों को खटाएं, लोगों को जो है उसके अंदर लगाएं, हर पंचायत के अंदर या हर जो है गाविसा के अंदर या हर जो है नगर पालिका के अंदर और इसी हर वार्ड के अंदर इसी तरह से लोगों को जो है उसके अंदर बहाल करें, क्या कहते हैं, मुताविन के तौर पे। और इस काम को सही से अंजाम देना चाहिए। ये चंद चीजें जो बिलखुसूस मैंने इसके अंदर रखा है, इसलिए कि खास तौर से कभी हम जो है दर्द का इजहार करते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट में हमारी जॉब नहीं है, पुलिस में हमारी जॉब नहीं है, हमारी जो है फला चीज में जो है हमको मान्यता नहीं है। तो हमने अपनी चीज को हुकूमत के सामने कभी कभार रखने में कमजोरी दिखा देते हैं, रखते नहीं है, सही तौर पे रखते नहीं है। संविधान ही है, अगर संविधान को आप बदलना चाहते हैं या उसके अंदर अपने हुकूक का मुतालबा करना चाहते हैं, उस हुकूक को रखना चाहते हैं, तो आप अपनी संख्या को बतलाइए, अपने तादाद को बतलाइए, तब आप उसके अंदर कुछ जो है मांग कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी संख्या को सही तौर पे न रख पाए, अपनी जुबान को सही तौर पे न रख पाए, अपनी जो है अहमियत को सही तौर पे न रख पाए, तो आपका मुतालबा जाहिर बात है आदत के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, आपकी लियाकत के हिसाब से आपको जो है वो चीज जो है मिलेगी। तो ये चीज बिलखुसूस अल्हम्दुलिल्लाह आज कह रहे यानी देखते हैं हम कि माशाअल्लाह मुस्लिम लीडर भी बहुत ज्यादा हैं। बस जो है मुतहर्रिक होने की जरूरत है, चाहे पुराने हों चाहे नए हों। और इस तरह से बहुत सारे लोग, और इस यही चीज यहाँ पे एक चीज मैं इशारा करते जाता हूँ कि अक्सर लोग जो हमारे खास तौर से दीनी पढ़े नेपाल में तरजीह दें पढ़ना लिखना, क्योंकि न्यूज वगैरह आप पढ़ेंगे, अखबार वगैरह नेपाली में पढ़िए, न्यूज वगैरह पढ़िए, इसी तरह से आप जो है रेडियो वगैरह सुनिए, आप जो है इसी तरह से क्या कहते हैं जो भी है, तो उस चीज को सुनने से आप अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जो शुरुआत की जिंदगी होती है 20 साल गुजार देते हैं इंडिया में, उसके बाद जो है 20 साल 21 साल के बाद गुजार देते हैं बाहर में, फिर हम अपने हालात से कैसे वाकिफ हो सकते हैं, अपने कमी कमजोरी को कैसे जो है जान सकते हैं, हम अपने हुकूक का मुतालबा, हम अपने हुकूक, हमारे क्या हुकूक हैं और किन चीजों को हम जो है ले सकते हैं हुकूमत से, संविधान में क्या लिखा हुआ, हमारे लिए कौन सी चीज है, इस चीज को कैसे जान सकते हैं। इसलिए नेपाल में तरजीह दें कि हमारी तालीम हो, अगर दीनी तालीम भी हो तो नेपाल में माशाअल्लाह, नेपाल में आलिम उलमा की कमी नहीं है। आज देखें तो सैकड़ों के तादाद में बाहर खारिज से पढ़े लिखे लोग हैं, अरबी जानने वाले हैं,
जो अरब ममालिक से पढ़ के आए हुए हैं, सैकड़ों की तादाद, सैकड़ा मैं कभी लेकिन सैकड़ों की तादाद में देख लें इसी तरह है, तो उसकी कमी नहीं है। आप अपने मुल्क के दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप कोई गैर मुस्लिम हो, कोई आए हमारी मदद चीज को सिफारिश करने के लिए हमसे 5 अपनी जुबान जानते हैं तो डायरेक्ट जाकर के बात कर सकते हैं। हम जो है सूचना पढ़ सकते हैं, जो बोर्ड लिखा हुआ होता है, चाहे वो सीडी ऑफिस के सामने हो, कहीं वो किस किस चीज की जरूरत है, नागरिकता बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत है, अगर जो है प्रतिलिपि लेना है तो किस किस चीज की जरूरत है, वो चीज अपने से जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर हम नेपाली पढ़े लिखे नहीं है, दूसरे से पूछते हैं, वो कहता है आओ तुमको जो है सब चीज कर देंगे, फार्म भी भर देंगे, क्या क्या चीज है वो सब जो है कर देते हैं, लाओ 2000 रुपया, 3000 रुपया, 5000 रुपया। इस तरह से हम जो है कमजोर हो जाते हैं, अपनी चीज को नहीं जान पाते हैं। तो अगर आप नेपाली पढ़ते हैं, नेपाल के अंदर पढ़ते हैं, नेपाल के अंदर तालीम हासिल करते हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। किसी भी जो है हुकूमती सतह पे आप बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, चाहे वो संसद में हो या इसी तरह से जो है क्या कहते हैं कि हुकूमती सतह पे हो, चाहे जो है कहीं रेडियो में हो, चाहे कहीं पे जो है कहते हैं कि गांव घर के अंदर हो, या किसी जो है सरकारी ऑफिस और दफातर के अंदर हो, कहीं भी अपनी बात को रख सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं, उनकी बात को जान सकते हैं, और इस तरह से आपको जो है जानना करना आसान हो जाएगा। बस ये चंद चीजें थी, मैंने आपको रखा है, शायद के जो है अहबाब आ चुके हैं और वो अपनी बात को मजीद तफसील से रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, बहुत अल्लाह आपको ज़ाय खैर अता फरमाए। हमारे साथ बशीर हबीब मदनी साहब जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद पता नहीं वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं या कोई टेक्निकल खराबी है। अगर आप हमें सुन रहे हो तो ज़रूर आप अपनी आवाज़ हमें सुनाएं, ताकि मैं समझूं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो है और भी हमारे साथ जो है हफीजुर रहमान मक्की साहब भी जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, और इसके साथ खालिद साहब भी जुड़े हुए थे। जी हफीजुर रहमान मक्की साहब, अगर आप सफर में हैं, रास्ते में कहाँ है मालूम नहीं मुझे, और आप तो यकीनन रहते हैं किसी न किसी सफर में ही, तो आप क्या कहना चाहेंगे जनगणना के ताल्लुक से? अपना ऑडियो वीडियो खोल लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्याकुमुल्लाह मशाइख। यकीनन जैसा जानते हैं कि जुमा के दिन और मशगूलियत, लेकिन मज़ीद एक इजाफा बता दूं कि सनीचर के दिन 4 घंटे की मीटिंग होती है मेरी अलग से, और बाज़ अहबाब बाज़ मशाइख हमारी मशगूलियत को जानते हैं, और बहुत बड़ी मशगूलियत है, और ये भी कौमी मिल्लत के फर्जंदान के ताल्लुक से है, इसलिए उसी चीज़ों के उन्हीं मलफ़ात वगैरह को पढ़ता हूँ। लेकिन फिर भी आज खाना के बाद देखा कि बहुत अहम मौजू ग्रुप में भी पढ़ने को मिला। और फिर अभी शेख अब्दुल रहीम हफिज़हुल्लाह की कुछ बातें सुन पाया हूँ, बहुत सारी बात और निकात से महरूम रह गया, इस वजह से कोई राय भी नहीं बना पाया हूँ। और जो अभी करंट टॉपिक है उस पे तो खैर जितने हम अपने कौम व मिल्लत के अहबाब को उभारें उतना ही कम है। और एक बात जो शेख ने कहा है कि हकीकत कि यहाँ से हम दुक्तूरा करके चले जाएं, और खुसूसन इस ग्रुप में उलमा लोग हैं, इसलिए अपनी ही ज़ात पे मर्दमशुमारी के पस मंज़र में बात करें कि आखिर हम यहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के संविधान, मुल्क के कवानीन, मुल्क के दस्तूर की जानकारी न होने की बिना पे अगर ये कहा जाए कि हम जाहिल हैं तो बेजा नहीं होगा। अभी शेख ने कहा कि सीडीओ कार्यालय में जाते हैं और सूचना भी नहीं पढ़ पाते हैं, कोई नोटिस है उसको नहीं पढ़ पाते हैं, गोया कि हम अपने मुल्क के दस्तूर के हिसाब से, हम अपने मुल्क और माहौल के एतबार से जाहिल हैं। वो आम जाहिल की तरह, जैसे कोई अगर औरत जाती है, कहते हैं मुझे नागरिकता बनाना है, ये फार्म भर दीजिए, तो फिर हम इतने बड़े दुक्तूरा, माजिस्टर और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बावजूद अगर हम अपने निवेदन न लिख पाए तो जाहिल ही में शुमार होंगे। और हकीकत है कि वाकई हम लोग अरबी मदारिस से पढ़ते तो हैं,
लेकिन निसाब में नेपाली जबान पे ध्यान कमा हक न दिए जाने की वजह से अक्सर व बेशतर क्या 99% उलमा जो है मतलब नेपाली से नाबलद हैं। इसलिए जो है हम जब मुल्क के रहने वाले हैं, और एक मुनासबत यही कहना चाहता हूँ कि हकीकत यह है कि मुल्क छोटा मुल्क है तो क्या हुआ, लेकिन ज़माने से इस्लामी मराकिज़ मदारिस न होने के बिना पे हम हिंदुस्तान पे निर्भर करते थे और अपनी दीनी तालीम के लिए वहाँ जाते थे। लेकिन अब जब कि हमारे मुल्क में खुद बहुत सारे मराकिज़ मदारिस खुल चुके हैं और वहाँ मुल्क के सरकारी निसाब में से खुसूसन नेपाली और इंग्लिश तो इंटरनेशनल है, नेपाली ज़बान की महारत हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वरना वाकई हम पढ़े हों या जाहिल हों, सब एक सफ में खड़े हैं, अपने हुकूक से महरूम हैं। और वाकई ऑफिस में जाने के बाद एक आम आदमी की तरह लाइन में लगना या निवेदन लिखवाना, अपने पैसे को सर्फ करवाना कि दे दो, उनको पूरा फार्म भर के आ जाता है। जबकि एक बार मैं खुद इस चीज को ट्राई किया, तो अगर चाहे इंसान तो जहां से फार्म 25 रुपये में मिलता है, 25 रुपये में ला करके खुद से भर सकता है और वो जो है टिकट लगा करके अपनी मुद्दा को रख सकता है। लेकिन होता क्या है, जब वहां जाता है तो अजीब, मैं अपनी बात बता रहा हूँ शेख, दूसरे मशाइख तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जालियात में काम करने की वजह से इजबारन हो मजबूरन हो तो नेपाली जबान सीखना पड़ा है, और बहुत सारे माशाल्लाह बड़े इत्कान के साथ सीखे भी हैं और किताब का तर्जमा भी किए हैं और इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। लेकिन ये मादूदे चंद हैं। लेकिन जो मदारिस हिंदुस्तान के से या नेपाल के फारिग होने के बाद अगर इस नेपाली जबान की मार्फत उनके पास नहीं है, तो देखें आप वहां जाकर सफ में खड़े होने के बाद नेपाली ऑफिसर के साथ बात करने से डरता है। पता नहीं, जबकि वो अगर ऑफिसर है तो ठीक है, वो मनसब पे कायम है, मनसब पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन हम अवाम ही की खिदमत के लिए बैठे हैं। लेकिन अपने हुकूक का मुतालबा करना, अपने हक को सही अल्फाज और सही अदब के पैराए में या उनके शयान शान जो अल्फाज है उस अल्फाज या उसके मनसब की जानकारी न बिना पे हम लोग अपने हक भी मांगने से और हासिल करने से दूर रह जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमी की बात है। जनगणना है, ठीक है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मजहब, अपने दीन और अपनी एक अलग शनाख्त के तौर पे उर्दू जबान को पेश कर रहे हैं। लेकिन ये उर्दू जबान अगर वाकई जैसा कि एक दो रिपोर्ट पढ़ने को मिला है कि उनके साथ तो बिल्कुल ही सौतेलापन और अदम एहतमाम का मौकिफ देखा जा रहा है, तो अब क्या है, बड़े बड़े मशाइख अभी इसमें राय दिए होंगे। और मैं कुछ 1.5 बल्कि 2 महीना से इतना मशगूल हो गया हूँ कि वाकई सही से पढ़ भी नहीं पाता हूँ, और जब बगैर मुताला के, बगैर हालात हाजरा की पूरी जानकारी न हो तो उसमें क्या दिया जा सकता है। अलबत्ता हम जितने उलमा हैं, हम लोग का बैकग्राउंड उर्दू है, हम लोग का लिखना पढ़ना समझना बोलना तामुल करना सब उर्दू में ही होता है, बल्कि सुबह शाम से का अक्सर व बेशतर हिस्सा उर्दू ही माहौल में गुजरता है। तदरीस तालीम का मामला हो, रहन सहन का मामला हो, घर का मामला हो, तो अगर वाकई जनगणना में हम तमाम मुसलमान अगर अपने दीन इस्लाम और अपनी ज़बान उर्दू देते हैं तो फ्यूचर में इंशाअल्लाहुल अज़ीम जिस माहौल में हम पलते बढ़ते हैं, जरीदा निकलता है, उसी तरह हो सकता है कि एक रस्मी ज़बान की हैसियत से उर्दू ज़बान अगर आ जाती है तो इंशाअल्लाह जो है हो सकता है सारे दस्तूर का उर्दू में तर्जमा हो। तो अगर कोई नेपाली की महारत न रखे और उर्दू में अगर उसका हुकूमती सरकारी ज़बान मुतरफ हो जाती है तो उसके जो है तर्जमा उर्दू में होंगे, तो जो चंद उलमा नेपाली जानते हैं नेपाली से भी इस्तेफादा करेंगे। लेकिन उसी दस्तूर उसी कवानीन ज़वाबित का अगर तर्जमा उर्दू मिल जाता है तो हम पूरे तौर पे एक नागरिक के नाते, एक देश के बाशिंदा के नाते हम देश के हुकूक जो हमारे दिए गए हैं उससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं और सही दुनिया में, रोशन दुनिया में जी सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य बात है कि हम के जो बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान हैं, इलिट पर्सन हैं, उन लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अपने अनपढ़ अवाम, अनपढ़ कौम को सही रास्ते पे लाने के लिए, उनको हुकूक दिलाने के लिए चढ़ बढ़ कर आगे आने की जरूरत है। बहरे कैफ ये जनगणना बहुत अहम है और इसी जनगणना ही के बिना पर किसी मुल्क की पॉलिसी तय होती है
اور اس لیے جو ہے مسلمان اس میں متخلف اور پیچھے نہ رہیں. اگر ہم پیچھے رہ گئے تو وہی کہنا پڑے گا کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی. تو اللہ نہ کرے ہمارے پڑوسی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے, اگر ہم اس میں اپنی صحیح تعداد کو نہیں بتا پائے, اپنی آواز اور تحریری طور پہ کاغذی طور پہ حکومت تک نہیں پہنچا پائے, تو نہ جانے فیوچر میں ہمارے مدارس اور مراکز کے ساتھ بھی بہت ہی برا سلوک ہونے کا امکان ہے. بہرکیف اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہم مسلمانوں کے اندر چاہے جس مسلک اور مذہب کے ماننے والے ہیں, یہ ہم اپنی تعداد, ہم اپنی شناخت کو حکومت کے سامنے پیش کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہماری صحیح تعداد اور ہماری صحیح مانگ پہنچ پائے, اور ہمارے جو حقوق جو خود ہم اپنے ضریب اور ٹیکس ادا کر رہے ہیں, لیکن ہم کو جو حکومت نے جو سہولت دیا ہے اس سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں اور لینے کی اہلیت بھی نہیں ہے اور نہ سمجھ پاتے ہیں. تو ہمارے اندر بیداری اللہ تبارک تعالیٰ پیدا کرے تاکہ یہ صحیح طریقے سے ہو. اور اس سے پہلے جیسے کہا گیا کئی لقاء کے اندر, میٹنگ کے اندر, اس کا طریقہ کار کے تعلق سے کیا کہتے ہیں, مسلم آیوگ کے صدر عزت مآب شمیم میاں انصاری نے کہا تھا کہ اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور اس موقع سے فارم جاری کیا جائے گا, اور اپنے طور پہ ہر شخص اپنی بستی کا, اپنے ضلع کا, چاہے جو سنستھا ہے, جمعیت ہے یا سنگھ ہے, اس کے تھرو جو ہے مسلمانوں کے اندر بیداری لائی جائے گی. اور ہر شخص اپنے قریہ سے جیسے امام کو اگر مکلف کر دیتے ہیں, واللہ میں کہتا ہوں شیخ اس پلیٹ فارم سے میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی ہمارے اپنے ضلع کا ہنسا سرہا کے اگر کچھ لوگ اگر لجنہ بناتے ہیں اور کچھ علماء کو, کچھ بھائی جو وہاں متفرغ ہیں ان کو کھٹاتے ہیں, اور ہر بستی کا نام, اس کا پروننسیشن, اس کا تلفظ کے ساتھ ساتھ اگر وہ اس چیز کی تیاری کے اوپر اگر کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے تو ہم ناچیز کو بھی اس میں شریک کیجیے اور اس کو علماء کو کھٹائیے. ایسا نہیں کہ تقریر ہی کے حد تک ہے, تحریر کے حد تک ہے, میدان عمل میں آنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس میں سستی بالکل قطعا جائز نہیں ہے. اس لیے جو ہے جب بھی اگر حکومتی ہرکارہ یا حکومتی جو ہے نمائندہ اگر پہنچتے ہیں تو اس گاؤں کا جو ہے اگر کوئی سیاسی شدھ بدھ اور شعور رکھنے والے ہیں, ان کو نظر میں ہونی چاہیے کہ ہمارے یہاں جنگننا کے افراد کب آ رہے ہیں, اور فوراً ہی امام کے پاس پورے لسٹ ہو اور وہ جا کے انہیں ہاتھ میں ڈال دے, اور یا تو ان کے رجسٹر میں درج کرا دے. جن کو کسی میٹنگ میں بیٹھ کر کے گھنٹوں بیٹھنا پڑ سکتا ہے, وہاں اگر ایک جگہ پورے لسٹ رہے تو اگر 1-1.5 گھنٹہ کے اندر پوری لسٹنگ ان کی پورے بستی کی ہو جائے گی. تو اس طرح سے واقعی اگر ہم دونوں ضلع کے لوگ اگر اس پہ کھڑے ہوں, چاہے مقصد حیات ہو یا مرکز ضلعی جمعیت اہل حدیث دھنوشا ہو, تو دیکھیں اس پہ کیا ہو سکتا ہے. ہر گاؤں میں اگر معمولی سا اگر امام کو تشجیعی طور پہ پیسہ دے دے, ٹھیلا میں کہہ دے امام صاحب کو کہ ہر بچہ, ہر عورتیں, ہر مرد کے مردم شماری کر کے دیں. اگر جرہیہ میں ہیں ان کو کہیں, بھکرہا میں ہیں تو ان کو کہیں. سب لوگ جہاں ہیں وہ اپنے اپنے گاؤں اور علاقے پہ دھیان دو, تو انشاءاللہ پھر یہ 10 سال کے بعد پھر رونا نہ آئے. تو بہت دنوں سے بات چل رہی تھی, اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے, مجھے ابھی بالکل, میں تقریباً 2 مہینے سے ان اخبار سے بالکل دور ہوں, لیکن دور میرے لیے رہنا جائز نہیں تھا, لیکن کچھ ضرورتیں ایسی تھی جو میں رہا ہوں, اس کے لیے میں معذرت پیش کرتا ہوں اور اسی پہ اکتفا کرتا ہوں, اور پھر میں آپ لوگوں کی بات کو سننے کے لیے انتظار کروں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بہت زبردست اور تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو کی. اللہ کو جزائے خیر دیا. بہت بہترین مشورہ بھی دیا کہ اس طرح سے کسی امام کو یا وہاں پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے, اگر ان کو بھی اگر کھٹا دیا جائے تو بہتر رہے گا. اس کے اوپر کچھ پیسے خرچ آئیں گے. اگر یہ دونوں چیزیں والے مل کر کے اگر کرتے ہیں, اور سعودی, قطر, دبئی سب مل کر کے اگر کرتے ہیں تو بہت ہی آسان ہو جائے گا. یہ اگر چاہیں تو ممکن ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر آہوان اگر آپ لوگ چاہیں تو کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ اس طرح سے کریں, اور اس طرح سے لوگوں کو دیا جائے گا. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ بعد میں گفتگو کر لیں گے. ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عبدالخالق صاحب. جی عبدالخالق صاحب, آپ اپنا آڈیو اور ویڈیو کھول لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عبدالخالق صاحب, آپ اپنا تعارف کرائیں اور اس کے بعد جناب, جنگنہ کے تعلق سے.
जो मालूमात हो आप फराहम करें। मेरा नाम अब्दुल खालिद है, अब्दुल खालिद तैमी, जामिया तैमी से फारिग हूँ और मैंने 2054 में SSLC किया था। मरदमशुमारी के ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारे पोस्टर डाल रहे हैं, तो इससे खातिर का फायदा नहीं हो रहा है। अभी जो पहला मरहला था वो हमारे गाँव में मुकम्मल हो गया है। मैंने घर में खबर कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग आते हैं वो तकरीबन चौधरी या दूसरे जो ये हैं वो लोग आते हैं और खास जो जब इसमें दिया गया है उसके हिसाब से नहीं पूछते हैं। वो सिर्फ जो घर में कितने लोग हैं, कितने अफराद हैं, बस वही पूछ करके और चले जाते हैं। तो इसके ताल्लुक से अगर बेहतर होता है कि गांव में अगर कुछ लोग, कुछ टीम मुकर्रर किया जाए, बनाया जाए और वो लोग उसमें मदद करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, इसके खातिर का फायदा होगा। नहीं जी जी, ये तो बहुत जरूरी है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ के अभी सिक्योरिटी जो खजांची है। सोशल मीडिया पे जी जी, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। हाँ, तो अभी तो पहला मरहला हो गया तकरीबन कुछ जगहों पे, दूसरा मरहला अभी बाकी है, तो उसको सुधारा जा सकता है और अभी टाइम है। तो इसके ताल्लुक से मेरे ख्याल से हर गांव में इस तरह से कमेटी ये कायम करके और उस कमेटी के जरिए कायम कराया जाए और जो लोग आते हैं उनसे डायरेक्ट रब्ता करके और हर घर में जा करके और उनके हिसाब से जो उसके मज़ामीन जो दिए गए हैं मरदमशुमारी में, जो जो चीज़ पूछना है वो सब एक एक करके पूछ करके और उसके हिसाब से लिखा जाए। ये लोग जैसे जाते हैं जुबान में अपने हिसाब से जो इलाकाई जुबान है वो लिख देते हैं, तो ये ना हो करके और जैसे उर्दू आप कह रहे हैं कि हाँ उर्दू लिखवाए जुबान में, तो उर्दू जुबान लिखवाएं। जी जी, बहुत कमी बेशी है हमारे यहाँ। और जुबान के ताल्लुक से मैंने 2054 में जब SSLC किया था तो उस वक्त मैं उर्दू लेना चाहा था, लेकिन उस वक्त कहा गया था कि कम से कम 3% स्टूडेंट उर्दू लेने वाले होने चाहिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। तो इसमें भी कमी है। तो अगर सब लोग जो मुस्लिम हैं उर्दू अगर लिखवाएंगे तो उसके हिसाब से तकरीबन जुबान भी दिया जाएगा मदरसे में, हर स्कूल में। अच्छा, उर्दू जबान जो है ना 2.7% है और इस्लाम के बारे में लिखा हुआ 3.39%। ये बताइए कि दो जगह बट गया हुआ है। अगर एक ही जगह उर्दू होता तो जाहिर सी बात है हमारा काम बन गया होता, लेकिन इस्लाम में भी एक भाषा बना दिया है इन लोगों ने। इस्लाम में एक भाषा अलग कर दिया है, उर्दू भाषा अलग कर दिया है। ये सारे मसाइल हैं हमारे यहाँ जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मजहब में भी कुछ लोग इस्लाम लिखवाते हैं और कुछ लोग मुस्लिम लिखवाते हैं, ये भी फर्क है। इसके हिसाब से पिछले वाले जो नेपाली निसाब की किताबों में जो तादाद जो लिखा गया था उसमें 2 किस्म का, मुस्लिम अलग और इस्लाम अलग, इस तरह से करके भी डिवाइड था। तकरीबन 1-1.5% इस्लाम होगा मुस्लिम तो अच्छा रहेगा और 2-2.5% इस तरह से 4% हो रहा था। हाँ, तो सब एक अगर हो तो उसके लिए तो आप तो सब लोग जानते ही हैं कि सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर ही हैं और हर घर में तकरीबन जो लोग जिम्मेदार हैं वो बाहर ही रहते हैं, घर में सिर्फ औरतें हैं, तो वो लोग कमा तो नहीं अदा कर पाती है जिसका हक है और उस तरह से नहीं लिखवा पाती। और 10 साल पहले जो है तो के हद तक इसको न रख करके गाँव में। हाँ वही जी, आप बोल रहे हैं। जी शेख, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अभी जहेज के ताल्लुक से अभी मुहिम तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और हो रहा था, लेकिन अगर 1-2 स्टॉप करके इस ताल्लुक से अगर मीटिंग रखी जाए, चाहे मकसद हयात या दिली जमीयत धनुषा जो अभी माशाल्लाह बहुत मुतहर्रिक है, और इस तरह से सारे गांव के उलमा से 5 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर अगर सबसे तवासुल करे, चाहे शेख अब्दुल अजीज साहब सदर दिली जमीयत धनुषा या शेख अकमल सिराजी साहब, हर इमाम अपने यहाँ तदरीस का काम करते ही हैं, हर शख्स के पास फितरा का जो है एक सिस्टम बना हुआ है, सबका नाम होता ही है, लेकिन फिर भी यानी असर नौ इस तरह से एक दरखास्त की जाए कि अगर पूरे लिस्ट बना करके
उम्र के साथ 1-2 दिन के अंदर अगर 2-4 शबाब को ले ले और हर गांव में अगर खबर पहुंच जाए और उसकी मुताबियत कर ली जाए और उस इलाके में कौन नुमाइंदा आ रहा है सरकार की तरफ से उन तक यानी उसको पहुंचाए। जैसे कि भाई अब्दुल खालिक तैमी से देख कर बड़ी खुशी हुई। वो मुझे भूल गए होंगे लेकिन मैं उनको पहचान रहा हूँ। तो इस तरह करके अगर वाकई मुताबियत कर ली जाए और उनसे जा करके अगर जो गलत रिपोर्ट चली गई है उसकी तस्हीह अभी मुमकिन है, जबकि करे एक पहला मरहला गुजर चुका है। तो क्या यानी 1-2 जुमा इस पे लगा दिया जाए तो नहीं होगा कि ऑफिसी से टेलीफोन ही के जरिए हर बस्ती के इमाम से एक तरह के रिकॉर्ड ले और उस इलाके का कौन मंदूब था, कौन लेने गया था, वहां एक आदमी को भेज करके और इस मालूमात की तस्हीह कर ले अगर वहां पे गलत रिकॉर्ड करके गए हैं तो। वरना ये सब जो है सिर्फ मीटिंग करने, तहरीर और तकरीर करने से कोई फायदा नहीं जब तक जमीनी अमल न हो, फील्ड वर्क न हो। तो इस तरह से मैं चाह रहा था कि जमीयत के प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और उस पे एक बड़ी तादाद है उस ग्रुप में लिखा जाए और फिर उस ग्रुप में जो बस्ती के हसास, जिम्मेदार और बाशऊर आदमी हैं उनसे मुताबित की जाए कि भाई अपने गांव का 2 दिन में मिलकर के किसी शबाब के जरिए पूरे बस्ती के मर्द, औरतें, बच्चों का नाम दर्ज करके और आप मुझे व्हाट्सएप पे दें या उस इलाके के जो जिम्मेदार है वहां तक पहुंचा दिया जाए और उस ये कापी जो है वहां पे जिली जमीयत के ऑफिस में पहुंच जाए। जो एक तीर से 2 शिकार, ये कम से कम हम अपने मुस्लिम बिरादरी के एक रिकॉर्ड भी हो जाए जमीयत के ऑफिस में और मजीद जो है सरकारी दफातर में भी पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल में अगर इस पे ऐलान लिखा जाए तो क्या कैसा रहेगा? जी बहुत बेहतर रहेगा। और मैं चाहते कि असल में जमीयत के किसी भी फर्द के अंदर शऊर नहीं है कि कम से कम जब इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो कोई जवाब दे या शामिल हो या कोई बात करे। कम से कम वो लोग आएंगे, जमीनी सतह पे वही लोग हैं वहां मौजूद हैं अभी, तो कम से कम उन लोगों को आना चाहिए, कुछ पूछना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ पहल करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही जब तक आप उसको उठाएंगे नहीं तो लोग उठने को तैयार ही नहीं होते हैं। हर एक मामला में देखा जाता है। तो कम से कम उन लोगों को भी थोड़ा शऊर पैदा करना चाहिए सब ताल्लुक से। अगर ये लोग साथ में आए, कभी जुड़े, कभी बात करें, कभी भी तो जुड़ जाएं। ऐसे ऐसे मसाइल के वक्त भी नहीं जुड़ते हैं तो फिर कब जुड़ेंगे ये लोग? आप उनको शेख अब्दुल अजीज को और शेख अकमल सिराजी और मतीउर रहमान भाई से बात करें और कहे कि एक भाई ऐसे ही जूम मीटिंग रखें इस जमीयत के ग्रुप पे, उन्हीं लोगों को मुनसिक बनाए, देखें कि वो लोग कहाँ तक कर पा रहे हैं और उन्हीं के प्लेटफॉर्म ही से मीटिंग हो, कोई बात नहीं। जब वो लोग तैयार हो जाएंगे तो आप लोग जो है उसका लिंक बना करके भेज देंगे और एक मीटिंग की शक्ल हो। कितने जोश खरोश के साथ जो है वहाँ धनुजी कटिया में हुआ था और अभी कह रहे थे छगरिया में होने वाला भी है। तो इस तरह से देखें ना क्या कहते हैं, ग्रुप पे लिखें और आप लिखें, मैं लिखूं, शेख अब्दुल रहीम साहब लिखें। इस तरह से ग्रुप पे लिखेंगे तो अपने रुदूद समझ में आ जाएगा ना कि क्या उनका जवाब आ रहा है और अहबाब जमात की तरफ से क्या जवाब आ रहा है। चाहे 20 अगर आदमी आ जाए कोई बात नहीं है। देखिए हमारा ये काम जो है इस्लाह उम्मत का काम, ये नबवी काम है, ये रसूलों का काम है और वारिस अंबिया का काम है। और अंबिया में से ऐसे भी अंबिया होंगे कि जो दिन की दावत देते देते दुनिया से चले गए लेकिन एक भी फर्ज उनके ऊपर ईमान नहीं लाया, उनका एक उम्मती भी नहीं होगा। तो इसलिए इससे हम गम खाने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ऐलान लिखिए इस ग्रुप पे, जमीयत धनुषा पे क्या क्या जवाब आ रहा है। और आ रहा है तो चंद ही अफराद मिल करके यहाँ एक तवासुल करते हैं हर गांव के सिक्योरिटी खजानती हो इमाम से। अब कोई नहीं कर रहा है तो उसके पीछे हम कब तक पढ़ते रहेंगे? हमारा जो फरीजा है, हमारी जो ड्यूटी है जिंदगी में अल्लाह ने भेजा है, उतने दिन हम नेकी कर लें बस। कल हो के हमें नेकी का दरवाजा बंद हो जाएगा। जी आवाज नहीं मेरी जा रही है शायद के? आ रही है, आ आ रही रही है। है, आ रही है, अच्छा हम अच्छा। सुन रहे हैं। तो क्या ख्याल है शेख, ऐलान आप लिखे हैं मेरे ख्याल में एक सदर की हैसियत से भी है कि देखिए क्या रद्द आ रहा है, क्या जवाब आ रहा है ग्रुप में कि भाई अभी जहां तक आप लोग जहेज मुहिम चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि इतने महीनों से मुसलसल और हर हफ्ते चल जाना भी ये बहुत बड़ी कामयाबी की दलील है। और जैसे बहुत सारे अहबाब ने कहा भी कि बहुत सारे लोगों को कम शर्मिंदगी तो होती है, एहसास होता है कि पता नहीं हमारे ऊपर कोई बरस जाए, तो छुप करके ये जो एलानिया तौर पे करते थे अब छुप के कर रहे हैं।
तो बहुत बड़ी कामयाबी है। कोई कहे कि 100% कामयाब हो जाए किसी तहरीक में, ऐसा भी नामुमकिन है, लेकिन वमा अलैना इल्लल बला के तहत हम बरी जिम्मा भी हो सकते हैं, होंगे इंशाअल्लाह। और जो कोताही है रब से माफी भी मांगते हैं। तो देखिए ग्रुप पे लिखिए शेख कि ये इस तरह के अहबाब की राय है, क्या लिख रहे हैं और इसका क्या हो सकता है। उसी तहरीकी के ज़िम्न में इसको अभी चलाएं, मेरे ख्याल में 1 हफ्ता, और 1 हफ्ता के अंदर में जो भी जिधर भी शबाब को भेजने की जरूरत पड़े उस पे अगर पैसा भी अगर सर्फ आता है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम टेलीफोन करके किसी को मुकल्लफ करे कि भाई टेलीफोन करें आप, जितना टेलीफोन पे खर्च होगा हम लोग पेड कर रहे हैं, अगर जाने की जरूरत पड़ेगी उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अभी जो है होना चाहिए शेख, काम बिल्कुल जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है। और खास तौर से मैंने जो है इससे पहले जो फार्म वगैरह भी बनाया था उस पे भी लोगों ने जोर नहीं दिया। जितने भी जो है मुकामी जमीयत के मसूल हैं सबको एक ग्रुप में शामिल करके जूम मीटिंग होनी चाहिए थी। इन लोगों की जो है जूम मीटिंग भी करते, जिस तरह भी मकसद हयात केस पे जो हो रहा है, तो कम से कम उन लोगों को भी राय मशवरा करना चाहिए। और अगर जो है कम वक्त के अंदर कोई चीज करना है तो ऑनलाइन ही जो है बेहतरीन सूरत है। और रह गई बात कि जमीयत के तरफ से खास तौर से जो अभी भेज रहे थे, अभी जो है 5 टीम है, 5 टीम को 1-2 हफ्ते के लिए खटा सकते हैं। जी ये 5 टीम तो बाद की बात है। पहला खुतवा मेरा यही कि 5 टीम वाले अगर सिर्फ जमा ही हो जाए ऑफिस में एक एक आदमी करके, और मामूली से आधा 1 घंटा के लिए, ऐसे टाइम में जहां खाने की जरूरत न पड़े, हतल मकदूर जमा हो और वहां जमा हो करके यानी सिर्फ टेलीफोन ही पे मुताबिक करें ना, जैसे ठिल्ला का इमाम से पूछे कि भाई इस तरह की राय है, क्या ख्याल है। हम चाह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर में वहां ठिला के 2-4 शबाब को पकड़ लीजिए, और जो भी वर्का फरका पे जो खर्च होगा तो इंशाल्लाह हम लोग जमीयत के ऑफिस से देंगे, और हम लोग जमीयतियों को पैसा जमा करके एक आदमी मजदूर वहां करके भेजेंगे, और फिर वहां से इस्तेलाम करके दूसरे इलाके का जिम्मेदार होगा जमीयत की तरफ से दिया जाए। अगर गाँव वाले अगर दिलचस्पी दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे भगवन में जो है पढ़े लिखे लोग मेरे ख्याल में बहुत ही कम होंगे, न के बराबर है। वहां तो खुद ये जमा करना भी मुश्किल है, और अगर जमा भी हो जाए तो किसी नेता तक पहुंचाना भी मुश्किल है। तो इस तरह से हमें सोच रहा था कि प्लेटफॉर्म के तहत अगर जमीयत के अफराद ही नशीत हो जाएं और कह दें कि हाँ भाई 4 गांव से तो आप रिपोर्ट जमा कर लें, 5 गांव से आप रिपोर्ट जमा कर लें, और इसमें थोड़ी दौड़ धूप हो जाए तो इंशाअल्लाह सरीउल तनफीज काम हो जाएगा। जी 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 फोन आ रहा है बहुत जरूरी, लेकिन आवाज मेरी गई या नहीं गई? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। अरे सलाम रहमतुल्लाह। अरे शकील साहब कहाँ आप रहते हैं? मैं इतना देर से कर रहा हूँ, आप एक शिफ्ट नहीं करते, ध्यान कहाँ रखते हैं आप? देखिए अब इसमें नहीं आ रहा है, थोड़ा जॉब में प्रॉब्लम चल रहा है। बहुत सारे आदमी ऐसा रिकॉर्डिंग किया है हमको, इसमें नहीं आ रहा है। जैसे अजीम हो गया, अजीम भाई इसमें आया है, उसको भी बहुत देर से यहाँ कर पे रहे लोग फोन करता है तो मेरी आवाज ही कट जाती है। जैसे हैं। कोई फोन किया तो आवाज कट जाती है, फिर काट के करता हूँ तो आप शिफ्ट ही नहीं करते हैं। नहीं यहाँ पर तो शो नहीं हो रहा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि 2 है अच्छा ना। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है। शकील कीजिए तो अभी कीजिए तो सबका साउंड बंद कीजिए तो क्या नहीं हो रहा है आपका? साउंड खोल लीजिए शेख, साउंड खोल लीजिए आप। जी बोलिए। जी 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 अमीरुल साहब कैसे हैं आप? अभी आया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। आपकी टीम क्या कर रही है ये जनगणना के ताल्लुक से? टीम तो लगा है अभी, इधर कतर में भी साथी सब है, घर पे भी बातचीत हो रहा है। तो लोगों को ज्यादा ठीक जागरूक करवाइए और थोड़ा बताइए लोगों को किस चीज को कहाँ पे लिखना है। तुर्की भाषा में क्या लिखेंगे, मातृक भाषा में क्या लिखना है, अन्य भाषा में क्या लिखना है ना। और इसी तरह से जो है धर्म में क्या लिखना है। असल में यहाँ पे हमारे यहाँ जो ना बड़ी गलती हो जाती है कि जैसे अभी देखिए भाषा के ताल्लुक से जो है उर्दू भाषा जो है
2.7 आया है अभी पिछले साल का, पिछले मर्तबा का जो है 2.7 है उर्दू का। और इस्लाम में सेम टू सेम भाषा के अंदर इस्लाम में लिखा हुआ है 4.39 यानी 4.39। ये भी एक भाषा हो गया। अगर उर्दू ही दोनों जगह होता तो तकरीबन कितना 4 2 6 1 7 पॉइंट हमारा होता। इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते थे, है ना। हम अपना उस्ताद भी उर्दू में स्कूल में भी रख सकते हैं। जब स्कूल के अंदर उस्ताद रखने के लिए कम से कम कह रहे थे वो 3% है, मुझे मालूम नहीं मुकम्मल मालूमात इसके बारे में, वजह 2.7 है। लेकिन अगर इस्लाम की जगह वो लोग भाषा ना लिख करके, भाषा में इस्लाम ना लिख करके वो लोग उर्दू लिखेंगे तो इस साल हमारा अच्छा खासा काम हो सकता है। देखिए 10 साल पहले वो शऊर हमारे अंदर नहीं था, न इतने सारे लोग पढ़े लिखे थे। पढ़ लिख करके भी लोग कभी कोई विदेश में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, ये सब में बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया किसी का। बहुत ही कम लोग इसके बारे में शऊर रखते थे और जानकारी रखते थे। इस मर्तबा इस सारी चीजें होने के बावजूद भी 1 साल से कम ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। जनगणना के ताल्लुक से शमीम मियां अंसारी को लेकर के आया, उसके बाद जो जाकिर भाई को भी लेके आया था, कई लोगों को मैंने जनगणना के ताल्लुक से लेकर आने की कोशिश की और लाया, सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज के लोगों को कम से कम ये चीजें पता चल जाए, है ना। इसी तरह से मैंने रात में भी फेसबुक पे भी लिखा और सारे लोगों को शेयर किया कि, और मैंने भाषा जो मातृक भाषा है और वो भाषा सारे भाषाओं को काट करके मैंने उससे क्या कहते दरखास्त से निकाला और मैंने शेयर किया ताकि लोग समझ जाए कि किसको कहाँ पे क्या लिखना है, ये सब शऊर पैदा करने के लिए। और मैंने ये आह्वान किया था कि खुतबा जुमा देने के लिए जितने भी हमारे इमाम जाएंगे पूरे नेपाल के अंदर, हर इमाम जो है अपने मौजू को खत्म करने के बाद 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो है जनगणना के बारे में जरूर बताएं, ताकि जो है आवाम को जो पता चले कि जनगणना क्या चीज है और क्यों इसकी अहमियत है और इसकी क्या जरूरत है। यही मैंने कहा था। लेकिन इसके ताल्लुक से सिर्फ एक आदमी 2 आदमी बोलने से नहीं होगा मेरे भाई, हर एक टीम को बोलना पड़ेगा, हर एक आदमी को बोलना पड़ेगा, जो जानकार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन सबको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के जो है कोई काम बन पाएगा। इस साल भी ना जाने हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं और ना जाने हमारा 2.7 आएगा या कितना आएगा, मालूम ही नहीं है। शऊर नहीं पैदा हो रहा, अभी तक नहीं शऊर पैदा हो रहा लोगों को। हमारे यहाँ एक दिन मैंने फोन किया अपने घर पे तो कहा कि सबके नाम लिखे ही, क्या बोलू घरे घरे जा जाकर, तो मैं समझ गया कि वही लोग आए हुए होंगे, समझ गया। लेकिन किसी ने आज तक नहीं बताया, हमारे गांव के लोग भी है ना, और सही मालूमात कोई नहीं दे पाया कि वो जनगणना वाला था या कौन था। औरतों को तो कुछ मालूम होता नहीं है, आया कितने लोग हैं कैसे क्या सब पूछ के चला गया। अब वो कह रहे हैं कि 3 मरहले में आएंगे, किसमें नाम लिखेगा, कब क्या लिखेगा, ये चीजें नहीं शऊर है, हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा है। अभी इसे पूछ के चले गए होंगे कितने लोग हैं तो कह जाओगा 5 आदमी या 10 आदमी वो लेकर के चले गए होंगे, ऐसे थोड़ी होता है। वहां पे हमें नुमाइंदा कायम करना होगा और वहां पे जिले जमीयत वाले जो हमारे हैं कम से कम उनको शऊर पैदा करना होगा, उन लोगों को कम से कम खटना होगा, थोड़ा मेहनत करनी होगी, तब जाकर के मुसलमानों की तादाद भी बढ़ पाएगी और इसी तरह से उनका जो उर्दू भाषा है वो भाषा बढ़ेगा। इन दोनों के ऊपर अगर मेहनत कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा काम हो जाएगा। साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं है, जब आप पूरे दरखास्त को जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपके जो हुकूक हैं वो हुकूक उस वक्त आपको दिए जाते हैं कि आपके यहाँ क्या क्या चीजें हैं। आपके यहाँ बैंक है नहीं है, बैंक बैलेंस है या नहीं है, बैंक के अंदर आपके खाते हैं कि नहीं है, स्कूल के अंदर आप टीचर है या नहीं है, आपका जॉब है या नहीं है, नौकरी है या नहीं है, ये सारी चीजों की तफसीलात देनी पड़ती है। आपके पास कितने मुर्गियां हैं, मुर्गे हैं, कितने आपके पास बकरे बकरियां हैं, कितने मवेशियां हैं, कितने हैं, ये सारी चीजों की तफसीलात देनी पड़ती है और हर एक खाना बना हुआ है एक एक करके, समझ रहे हैं। आप जब दरखास्त देखेंगे, दरखास्त मैंने भेज दिया हुआ है हर जगह, है ना। जी अभी भी सोशल मीडिया पर कोई पहाड़ी इलाका में जो मियाँ भाषा लिखता है, हम लोगों को उर्दू भाषा, इसी में अभी भी कंफ्यूज है। बहुत सोशल मीडिया पे बहुत देखा मैं ऐसा पोस्ट। अभी कुछ लोग जो हैं वो पूरे नेपाल में जो है एक लड़की है वहाँ की विराटनगर की और एक और पहाड़ का कोई आदमी है, वो दोनों आज कल जाकिर भाई ने कहा था मुझे कि ये दोनों आदमी जो है वो मियाँ भाषा को ही करना चाहते हैं, उर्दू को बिल्कुल ही निकाल देना चाह रहे हैं, है ना। तो ये इस तरह की बातें लोग अभी कर रहे हैं और जो जनगणना वाला जो एक पेज है उस पेज के ऊपर भी सारी बहसें चल रही है। तो मेरे भाई मुसलमानों का जो एक राब्ते का जो भाषा होगा और जो जहाँ खुतबा जलसे जुलूस तकारीर निकाह खानी जितनी सारी चीजें होती है, वो इजाब कबूल, वो सारी चीजें तकरीबन जो उर्दू में होती है, तो सब सारे लोगों का इत्तेफाक हो सकता है इसके ऊपर। बंगाली, मैथिली, भोजपुरी, इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सकता है, लेकिन उर्दू सारे के सारे लोग बोलते हैं, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। उर्दू 2.7 अभी है और इस्लाम 4.39 है, तो इनको अगर एक कर दिया जाए तो 7% तो हमारा पिछले हफ्ते में आ सकता है, लेकिन इसको लिखाएगा कौन? जैसा का तैसा अगर लिख दिया तो फिर तो जू का तू ही रह जाएगा और जितने बड़े बड़े विद्वान हमारे यहाँ सब देखते देखते रह जाएंगे और तकते के तकते रह जाएंगे।
اس لیے جو ہے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو, عوام کو جگانے کی ضرورت ہے. تو ہم لوگوں کو اس کے اوپر کام کرنے کی, ہم لوگ اسی طرح سے اس کے اوپر کام کریں تو جا کر کے انشاءاللہ کچھ ہوگا. میں نے ذاکر صاحب کو آج دعوت دی تھی اور ان سے میں نے بات بھی کی تھی کہ آج آپ آئیں, تھوڑا جنگنا کے تعلق سے ہمیں بتائیں, اور میں چاہ رہا تھا کہ اسے پوچھوں کہ کتنے پرسنٹیج مسلمانوں کی تعداد ہو جائے گی تو کیا حقوق ملیں گے, ان کے کیا بھاشے کتنے پرسنٹ ہوں گے تو جا کر کے ان کو کیا حقوق ملیں گے. تو لیکن وہ بیچارے کسی کام میں شاید الجھ گئے ہیں, اسی لیے وہ نہیں آ پائے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بات ہو, تو ابھی تک انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیوں نہیں آیا ہے, تو میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ نہیں آ پائے ہیں. بہرحال ہم سب کو جو ہے اسی طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. عوام کے اندر, معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم لوگ ہی سو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے شیطان تو سوتا نہیں ہے, شیطان اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. اور ہم علماء جو ہے سو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آئے گا تو جائیں گے ہم تبلیغ کرنے کے لیے, ورنہ ہم تبلیغ کے بھی یہ نہیں رہتے ہیں کہ چلو یار تبلیغ بھی کرنا ہے اور ہمیں دعوت اور دین کی بات بھی بتانی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اتنی زیادہ کمی ہے کہ اگر ہم لوگ کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو بس اپنا کھانا پینا ناشتہ اس چکر میں رہتے ہیں, اور کبھی دعوت کا کام ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. دعوت جو مسلمانوں میں ہونی چاہیے, دعوت جو غیر مسلموں میں ہونی چاہیے, وہ ساری چیزوں کا مفقود ہمارے یہاں پایا جاتا ہے نا, فقدان ہے ہمارے یہاں. تو میرے بھائیوں, ان سب چیزوں کے اوپر ہم سب کو دھیان دینے کی ضرورت پڑے گی. جب تک زندگی ہے ہم لوگ چاہیں گے کہ اس سب کام کو ہم لوگ کرتے رہیں. ہمارے صدر صاحب شاید جو ہے ہم سے ابھی نہیں جڑے ہوئے ہیں, وہ نکل چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں شیخ عبدالرحیم مدنی حفظہ اللہ جو ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ شکیل صاحب, جنگنا کے تعلق سے اگر آپ کے پاس کوئی نظم ہے تو پڑھ کے سنائیے انصر نیپالی صاحب کا. جی وہ تو نہیں ہے, مگر ایک چیز امپورٹنٹ چیز ہے, جیسے ابھی جیسے جنگنا کے طور پہ جیسے ابھی خطبہ وغیرہ تو جمعہ کے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے حساب سے جیسے 3 بھاگ میں آئے گا, تو ایک بھاگ میں کیا کرے گا, جیسے کیا کیا چیز کہے گا وہ چیز, جیسے لاسٹ بھاگ میں کیا کیا پوچھے جائے گا وہ لسٹ آپ تیار کر لیں. جیسے سمیمی انصاری سے جس سے بھی وہ پورے لسٹ تیار کر کے آپ PDF اور جہاں جہاں دوست احباب ہے جہاں جہاں جمعہ سے پہلے آپ بھیج دیں, اس کو پرنٹ کر کے A4 میں. جمعہ کے جیسے لاسٹ میں خطبہ ختم ہو جائے گا تو 2 منٹ یا 5 منٹ ویٹ کریے, یعنی رکنے کے لیے. اس کے بعد میں بتائے کہ جنگنا آئے گا سرکاری طرف سے, جیسے کچھ آدمی آئے گا آپ سے پوچھے جائیں گے 3 مرتبہ آئے گا تو یہ چیز پوچھا جائے گا, تو آپ اس طرح سے بیان کرے آپ کو کیا کیا کہتے ہیں کہ دھرم میں کیا ہے کہ اسلام ہے, اور پرکھا بھاشا میں کیا ہے تو اردو ہے, جاتی میں کیا ہے تو مسلم ہے. تو یہ چیز بتایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا. یہی ہمارے پاس زیادہ کر آپشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. PDF بنائے, آپ PDF بنا کر ہر جگہ میں جہاں جہاں آپ ہو سکتا ہے وہاں وہاں بھیجے, اور خطبہ جو دے گا شیخ تو وہ 5 منٹ یا 2 منٹ بتائیں گے تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے. میں کاٹ کاٹ کر کے پورے کو ڈالے ہوا ہوں, پرکھا بھاشا ہے نا, ماترک بھاشا, دوسرا بھاشا ہے نا, جاتی کیا ہے آپ کا, مذہب دھرم کیا ہے, وہ سارے کو میں نے کاٹ کر کے 5 کو میں نے فیس بک کے اوپر بھی میں نے شیئر کیا ہوا ہے, اور یہ چیزیں میں نے جو ہے اس کے اندر بھیج دیا ہوا ہے تاکہ لوگوں کو جانکاری ہو جائے کہ کہاں پہ کیا لکھنا ہے. جی شیخ, یہ نہیں فیس بک میں نہیں دیکھتا ہے, آپ کو اتنا نہیں دیکھتا ہے, یا ہم کو یا وغیرہ وغیرہ زیادہ کر نہیں دیکھتے ہیں. جو ملی صاحب سے جو خطبہ دینے والے ہوتے ہیں, جو خطبہ دیں گے وہاں پر تو کم سے کم 80-90% جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, خواتین ہو گیا یا مرد, جتنے بھی حضرات بچے چھوٹے بس سب جاتے ہیں. کہ اس کے لیے آپ ایک PDF بنائیں, تیار کریں, اسی میں سے چیز جو امپورٹنٹ ہے خاص, جیسے 5-10 جو امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ذمہ داری میں آپ ہی کو دیتا ہوں. جو درخواست ہے وہ ایک پیج کا آپ جو بھیجے تھے میرے پاس ہے نا, اسی کے اندر سب کچھ موجود ہے. اس کو یا تو پرنٹ کر کے دیجئے یا اس کو بنا کر کے دیجئے, یا جیسے دینا ہو دیجئے, جس میں دھرم لکھا ہوا ہے نا, پرکھولی بھاشا ہے نا, ماترک بھاشا اور دوسرا بھاشا, اس طرح سے سب لکھا ہوا ہے نا, مذہب دھرم لکھا ہوا ہے, تو وہ سب کو بنا کر کے دیجئے, ایک فارمیٹ بنائیے, سمجھ رہے ہیں, اور وہ بنا کر کے آپ ہمیں بھیجیے, جو کمی بیشی ہوگی اس کو پورا کر کے انشاءاللہ جو ہے آنے والے ہفتے کو ہم لوگوں کو بھیج دیں گے. PDF بنا کر کے ہو یا فوٹو بنا کر کے ہو یا جیسے بھی ہو, انشاءاللہ جو ہے سب لوگ خطبہ جمعہ میں بھی اس کو دیں گے. اور انشاءاللہ جو ہے ہم آئندہ دیکھتے ہیں کسی اور اچھے آدمی کو جو اس کے بارے میں جانکار ہوں گا, یا آپ لوگ بھی ہمیں بتائیں کہ اگر اس کے بارے میں کسی کو جانکاری ہو تو جنگنا کے طرف سے ہم انشاءاللہ 2-4-5 آدمی کو بھی بلانا چاہیں گے, اور جو اس کے اندر نیتا لوگ ہو یا کوئی لوگ ہو تو آپ لوگ ذرا ہمیں بھی ان کے بارے میں بتائیں, ان کا نمبر دیں, انشاءاللہ ان سب کو جوڑنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. انشاءاللہ. جی کلام صاحب ہیں, ابوالکلام صاحب. جی بولیے سر, بولیے. جی آپ اپنا آڈیو ویڈیو کھولیے اور آپ بھی اس کے اوپر 5 منٹ کچھ بولیے. جنگنا کے تعلق سے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ اپنے ٹیم کے اندر جو ٹھیلا ٹیم ہو گیا, گلف والا ٹیم ہے, فنا ٹیم ہے, جتنی ٹیمیں ہیں ان سب ٹیم والوں کو کیسے جاگروک کریں گے آپ؟
काम कर रहे हैं, आप कर ही रहे हैं, तो आपके पीछे हम ये हैं, बस यही नहीं तो काम। मैं चाह रहा हूँ कि जो आपके जैसे पूरे गांव के अंदर का आपका एक टीम अलग से है ना, उस गांव के अंदर उन जो लोग शोर रखते हैं इस चीज का, जो जानकारी रखते हैं, उन लोगों को खटाइए आप अपने गांव में। जनगणना आया या नहीं आया, अगर आ चुका है तो ये कहाँ का मंदूब आया हुआ था, उस मंदूब के पास जाइए, देखिए उसके पास मुकम्मल मालूमात है या नहीं है। ये वहाँ पे आपके गाँव के अंदर जो लोग होंगे, है ना, जो ऐसे नेता किस्म के लोग, वो जाकर के जहाँ बात कर सकते हैं, कौन नुमाइंदा आया था, कौन लोग आए थे, है ना, कौन सुपरवाइजर आया था, तो उनसे जाकर के वो बात करके देखें कि हमारे गांव का जो सब कुछ है वो सही है या नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तो आप अपने गांव में बात करें, अपनी टीम में बात करें। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जो भी जिस टीम के अंदर है, वो हर टीम के अंदर के लोग जो है अपने गांव सतह पे से मालूमात करने की कोशिश करें, है ना, ताकि जो है आपके गांव की मुकम्मल जानकारी आपको मिल सके और वहां पे सही मालूमात जा सके। जी, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे कलाम साहब? नहीं, इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे हम लोग, इंशाल्लाह अगले जुमा को रिपोर्ट देंगे इस तरीके से। कितने तारीख से जनगणना अपने यहाँ? जनगणना तो शुरू हो चुका है, पहला मरहला खत्म होने को है, तकरीबन खत्म होने ही वाला है। उसमें देखिए, मैं आपको रात भी भेजा था, कल भी भेजा हूँ शायद, वो कब होने वाला है, अब्दुल साहब ने भी लिखा भेजा था, और कई लोगों ने भेजा पूरी तारीख। और जनगणना जब लिखेंगे आप वेबसाइट के ऊपर, तो पूरी तफसील आपको पहले वही आएगा, कब से शुरू है, कब खत्म है, फिर दूसरा मरहला कब है, तीसरा मरहला कब है, वो सब जैसे ही आप जनगणना लिखेंगे वेबसाइट के ऊपर, तो सबसे पहले वही आपके सामने आएगा और पूरी तफसील मौजूद है, कब किस साल में कितना हुआ। तो उसमें जिले जमीयत, सुनिए ना, जिले जमीयत भी तो उसको भी जिम्मेदारी दीजिए ना, वो लोग भी गांव में जा रहा है, मतलब जम के थोड़ा काम करें। और मकसद हयात के आदमी जो आलिम उलमा जो जा रहे हैं उनको भी कहिए, और मरकज फुरकान वाले भी कहें, जहाँ जहाँ पे जाएं दिखाएं, लोगों से बताएं, तो इंशाल्लाह काम होगा। जी इंशाल्लाह कोशिश तो की जाएगी। फुरकान वाले भी गए इस मरतबा, तो मैंने शेख अब्दुल साहब को रांची मैंने कहा था, फोन करके बात की थी, तो मैंने कहा था कि जो भी आपके लोग जाएंगे पढ़ाने के लिए जुमा, तो उनको जरूर आप आगाह कर दीजिए कि जो लोग जाएं तो कम से कम 5 से 10 मिनट जो है जनगणना के बारे में ही बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से, इनके यहाँ से खुतबा जुमा भी इलाके में शुरू हो गया है, और तकरीबन फुरकान के लोग जो है हर जगह, हर इलाके में, हर गाँव में बदल के 4-5 लोग, 5-6 उलमा के नाम जाएंगे और जाते रहते हैं, और इनका तो बराबर का लिस्ट रहता है, वो तो सब लोग देखते हैं। तो इंशाल्लाह इनको भी मैंने रात भी कह दिया था, और बार बार कहता हूँ कि जो भी हमारे पास टाइम बाकी है, इस टाइम के अंदर जितने भी हमारे उलमा किराम जाएंगे इधर उधर, सबको जो है कहने की जरूरत है, उनको क्या कहते हैं, मालूमात देने की जरूरत है, और वो लोग भी जा करके जो आवाम को इस चीज की मालूमात दें। जी शेख अब्दुल साहब, मैं चाहूंगा कि अब आखिर में आप अपना दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का अख्ताम करें, और माशाल्लाह आपका फुरकान जो है उसके ताल्लुक से भी कुछ बताएं। अगर पढ़ाई शुरू हो गई है तो इंशाल्लाह आज हम लोगों ने मीटिंग रखा हुआ है, अबुल कलाम साहब को मैं कहता हूँ कि आप भी आइए इसमें, ग्रैंड मॉल में इंशाल्लाह बैठते हैं, बातचीत करते हैं। जो हमारे यहाँ इतने दिनों से सर्द महरी आ गई थी, इंशाल्लाह फिर से आपका मदरसा शुरू हुआ, तो हम लोग भी थोड़ा सा हरकत करेंगे, ताकि जो है हमारे कुछ अहबाब जो वादा किए हुए हैं फुरकान के अंदर, और देने की, कुछ लेने की, और फजलत की तालीम के लिए, तो इंशाल्लाह वो लोग आएंगे और उन लोगों से बात की जाएगी। तो इंशाल्लाह आज हमारी मीटिंग है, देखिए कितने लोग पहुंचते हैं और कितने लोग आते हैं। तो आखिर में जो है आप दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का अख्ताम करें। सलाम अलैकुम शेख, एक बात रखना चाह रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी बोला। बस 1 ही मिनट माजरत के साथ सदर की इजाजत से, अभी मैंने अपने घर फोन किया है, तो हमने कहा हमारे यहाँ आया था जनगणना वाले, तो कहाँ 5-6 दिन पहले आए हुए थे, तो उन्होंने पूछा कि कितने आदमी हैं आपके पास, कितने लड़के हैं, तो कहा कि 2, तो भिन्न है कि अलग अलग है, तो कहा कि मतलब सब शामिल ही में है, तो कहा क्या, और ये लड़के सब कहाँ रहते हैं, तो कहते हैं एक विदेश में है, तो कहा कि जो विदेश में उसको लिखना नहीं पड़ेगा, जो यहाँ है उन्हीं को लिखना पड़ेगा। ये बताइए कहाँ तक की बात सही है? इस तरह के आपके यहाँ भी हुआ है? अगर ये इस तरह की बात है कि अगर हम विदेश में है तो हमारा उसमें शुमार नहीं होगा, तो पता चला मेरे घर से सिर्फ एक ही आदमी का नाम जाएगा, तो वैसे भी मुसलमानों की तादाद कम आ जाएगी। भाई जितने हैं उस घर में रह रहे हैं, नेपाल के नागरिकता बनाए हैं, नेपाल का हम शर्म का पैसा दे करके आ रहे हैं, तो क्या नेपाली नागरिक हैं तो चाहे जहां भी हो उनको शुमार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इसके ताल्लुक से क्या जानकारी है आप लोगों को? यही तो जुल्म हो रहा है ना, यही चीज पहले भी हुआ है और अब भी यही चीज होने जा रहा है। इसके ऊपर जो है हमारे लोग बिल्कुल सोए हुए हैं, समझ रहे हैं। जो गांव के अंदर जो जमीनी सतह पे लोग रह रहे हैं, क्या वहाँ पे ये शोर रखने वाले कोई नहीं वहाँ पे मौजूद है इसके ऊपर आवाज उठाए या लोग बोले? हम लोग बाहर रहते हैं, हमेशा कई सालों से हम लोग बाहर रहते हैं, पता नहीं हम लोग इसके बारे में, ना हमने कभी देखा ना सुना, लेकिन कम से कम बार बार इसके ऊपर मैं तवज्जो दिलवा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और कोई लोग इसके मुतालिक बताने को तैयार नहीं है।
कि हमारे गांव में ये आया वो आया, इस तरह की बात हुई? कोई कहने को तैयार है आज तक? अभी आपने पूछा है तो जाकर के आपको बताया है। समझ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मान के चले उसी में जो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम भी पूरे दुबई में, कुवैत में, अमेरिका, जहां जापान में रहता है, क्या उसके नॉन मुस्लिम को उसका नाम नहीं लिखा जाएगा? तो उनके ताल्लुक से यानी ये कंस्पेरेसी जो है यहीं से नहीं, इंटरनेशनल कहिए, नेशनल कहिए, हर जगह मुसलमानों के साथ सौतेला सुलूक किया जा रहा है। और जबकि वहीं पे हिंदू रहेगा तो 5 लिखाएगा, लेकिन मुसलमान अगर विदेश में है तो उसको कह रहा है उसको लिखाने की जरूरत नहीं है। भाई अगर हम 2 भाई में तो वहां तुम्हारे रिकॉर्ड में तो एक ही आदमी का नाम जाएगा, जनसंख्या एक ही बताएगा तो ऑटोमेटिक मुसलमानों की तादाद कम हो जाएगी। ये तो इतना बड़ा जुल्म उन्होंने किया हुआ है कि इसको जितना आप बयान करें कम है। और मैं कहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा बात काम करने की जरूरत पड़ेगी अभी, और वहां जाकर अल्लाह चेक करने की जरूरत मुझे तो पड़ेगी। मैं जो है बहुत अभी गुस्से में था, अभी आपकी बात क्योंकि सदर के लिए ऐलान कर रहे थे इसलिए मैं उधर काट दिया अम्मी की बात को, वरना कानूनी तौर पे इस मुजरिमों को कटहरी में खड़ा होकर ये किसने इख्तियार दिया कि सरकार की तरफ से आदेश है कि जो विदेश में है उसका नाम नहीं लिखा जाए? उस पर निवेदन कर दिया है कि तुमको आदेश में कहाँ लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास? इस तरह के सवाल क्यों कर रहे हैं? सुनिए, जो आपके गांव में, सुनिए, जो आपके गांव में जो मंदूब या सुपरवाइजर गया हुआ था उसका नाम लिस्ट और निकलवाइए, समझ गए? और उसको कैसे भी करके किसी भी नेता को भेज करके उसका नाम निकलवाइए और उसका जो लिस्ट है उसको निकलवाइए और उसमें चेक कीजिए कि कितने लोगों को उन्होंने नाम लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद उसके ऊपर केस किया जाए, 1-2 के ऊपर केस हो जाएगा ना तो पूरा मामला सही हो जाएगा। मैं उनको बख्शूंगा नहीं। अभी मैं जो है वहाँ का क्या कहते हैं दिनेश या क्या है नेता है मेरे पास नंबर भी है, उनको मैं फोन करता हूँ। पता नहीं कैसे जाके करा है जो विदेश में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदू जो यहाँ जद्दा में काम करता है उसका बेटा तो उसको वहाँ जनगणना नहीं करेगा। तो ये कौन सी सौतेलापन शुरू कर रहा है नेपाल का, सुनिए, विदेश में नहीं है? नेपाल का जो भी आदमी है जिनके पास नागरिकता है, जिनके पास जो नेपाली है, चाहे छोटा बच्चा हो उनके पास नागरिकता न भी हो तो भी वो फाइल के अंदर लिखा हुआ, पढ़िए ना आप। मैं थोड़ा तो शेयर भी किया था इस पूरे फाइल को, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि छोटा बच्चा कितने साल का है ना, उसका नागरिकता बना हुआ या नहीं बना, पूरा तफसील है। आप उसको पढ़ेंगे तो एकदम दंग रह जाएंगे आप, मुकम्मल तफसील है। ये लोग लिखना ही नहीं चाह रहे हैं, ना टाइम देना चाह रहे हैं, क्योंकि एक एक घर के ऊपर आधा घंटा ये लगेगा। जो है ना बहुत दुर्भाग्य बात है शेख, मैंने पहले भी कह दिया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ कि आखिर जो गांव के इमाम या कहीं भी ये जहन बन जाए कि कहीं का नुमाइंदा आए, अलातुल फला पहले गांव के जिम्मेदार या प्रधान के पास जाइए, वो जाकर के फौरन इमाम के पास भेजे या उनके पास रिकॉर्ड हो, फौरन कहे कि ये रिकॉर्ड है, इस तरह से लिखते जाइए अलातुल अपना भर करके वो चला जाए फार्म को। लेकिन इस तरह से कहे कि जो विदेश में है ना, मतलब उसको लिखने की नहीं, वो जरूरत नहीं नहीं हो है। पाएगा। आप नहीं समझ पा रहे हैं। सुपरवाइजर जितने भी आए हैं जो उनको तालीम दी जाती है, आप जब जनगणना खोलेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको तालीम मिलेगा कि जो भी सुपरवाइजर होते हैं उसको तालीम दी जाती है। उसको तालीम यही दी जाती है कि किसी एक जगह नहीं कर सकता वो, उनको हर घर पे जाना है, हर एक से पूछना है, ये जरूरी है उनके लिए। वहां पे हर चीज का सवाल होता है, आपके यहाँ कितने मुर्गियां हैं, कितने ये सब चीजें हैं, वो सब चीजें, कितने कितने सारे सब चीजें हैं, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने किसका नागरिकता बना हुआ है, किसका नहीं बना हुआ, कितने लोग, ये सब सारी चीजें तफसीलात है वहां पे। तो हर घर पे जाना जरूरी है। सुनिए ना शेख, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन क्या जितने इंस्ट्रक्शन उनको मिले हैं वो सारे की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं? हरगिज नहीं करते। वो तो चाहते रहते हैं कि खुरपी चुहा कोइन हुआ वाले लाइए सिग्नेचर कर देते हैं, कुछ का किया कुछ का चला गया। अगर ऐसी बात ही है तो उसका भी फर्स्ट स्टेप में जाकर के नाम दर्ज कर ले अपना, उनके साथ जैसे गांव का वार्ड अध्यक्ष है या गांव का जो कोई पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी है उनके साथ घूम ले पूरी जगह, देखें कि वाकई हमने मालूमात दिया। उसी को पहले 1 घंटा बैठ करके उनको खुद खुशी होगी कि चलो भाई पूरे गांव में घर घर दौड़ने के बजाय 2 घंटा में इसका मैं सरकारी ड्यूटी काम कर लिया, खलास कहीं जाए कौम। वो सरकारी ड्यूटी वाले तो चाहते हैं कि वो बाज़ाब्ता मुर्गी और मैना का 1-2 का पूछ लेता है, लेकिन हर घर में उतना वो टाइम दे पाएगा तो वो 4 दिन एक ही बस्ती में लग जाएगा और वो कोई काम नहीं कर पाएगा। सरकारी काम उतने तफसील से नहीं करता है, लेकिन कम से कम जो है वो रिकॉर्ड एक जगह बैठ कर ले और फिर पूरे गांव में घूम जाए ताकि वो सरकारी सरजनी से बच जाए। इसलिए घर घर में सबसे पहले इसके बारे में अच्छा से बताना पड़ेगा, हम सब आदमी को मिलकर। और गांव गांव में अभी हर गांव में यानी कि 10-12 साल का लड़का 8-9 में पढ़ने वाला है हमारा, इसलिए मुस्लिम समुदाय में है, हर गांव में है। उसको क्या करे, एक मीटिंग के जैसे ब्याह शादी होता है वैसे कमेटी खटाता है वैसे खटाइए, हर घर में जाके अच्छा से मालूमात दीजिए। क्योंकि सबसे पहले हमारा घर में किसी आपके घर में जाएगा तो ज्यादातर महिला ही है घर पे, वो लोग पूछेगा कितना आदमी है तो डर जाएगा, सरकारी आदमी है, केस तो नहीं कर दिया, पुलिस तो नहीं कर दिया, ये सब बहुत बात हो जाता है महिला के जन्म में। इसके लिए हम लोग बहुत पिछड़ गया है मुस्लिम समुदाय जितना है ना नेपाल के अंदर में।
मेन चीज ये है अस्सलाम फोकस। वालेकुम रहमतुल्लाह। इसके लिए बहुत जरूरी है अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी बताया ना एक शेख साहब, उसका नाम क्या है, हफीजुर रहमान, वो बताया कि हो सकता है तो कोई जो हमारा मदरसा का कमेटी का कोई अध्यक्ष है उसके दिया जाए पूरा ना, क्योंकि तनख्वाह के टाइम में कुछ लिस्ट होता है, वो लोग पूरा किसके घर में कितना बच्चा है, क्या है नहीं है, वो ऑलमोस्ट होता है। थोड़ा जो बैंक डिटेल और घर कितना है, घराड़ी कितना है, ये वगैरह ये नहीं होता, तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन करना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए बोलता हूँ कि गांव में जाके एक कमेटी बनाइए, 10-12 आदमी मिलकर हर घर में जाके अच्छा से उसको समझाइए, तब जाके हम लोग सक्सेस होएगा इंशाअल्लाह। फर्स्ट स्टेप में जाकर कम से कम मिलकर उसकी फाइलिंग करा दे, ताकि उस बेचारे सरकारी सरकारे को उसको जो है मदद भी हो जाएगी। वो इतने मेहनत नहीं करते हैं, वो सोचते इधर जी, क्या जी, उधर आपका- पूछा निकल गया, तो ये कम आपका से कम बात नाम बिल्कुल दर्ज सही करा है, ले, लेकिन बाकी जो चीज घर घर आपके बजा के मालूम करे। मुस्लिम जो आयोग आपके वाले घर- बोल रहे थे कि हमारे आदमी भी साथ में जाएंगे, लेकिन वो कितने के साथ कितने गांव में जाएंगे, कितने आदमी ये है सब ही उनके पास। ये सब अभी- बातें सब देखिए शेख, ये सब ऐसी चीज है। मैं इसीलिए फर्स्ट लेकान उनको कहा था कि अगर आप हैं, लेकिन एक लड़की को मैं जो है सलाम करता हूँ, जिन्होंने कहा था मुस्लिम आयोग तो है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म से नहीं कहा था, ये ईमान जो प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने कहा था, उस काठमांडू की है, उन्होंने कहा कि मुस्लिम आयोग, नाम क्या है मुस्लिम आयोग, यानी रिलेटेड टू मुस्लिम, लेकिन उस आयोग में काम करने वाले सारे नॉन मुस्लिम। ये दुर्भाग्य की बात नहीं। दूसरी बात मैंने कहा था आप ही के प्लेटफॉर्म से शमी मियां अंसारी साहब से, कि अगर वाकई आप हैं अभी फॉर्म में, अभी आप पावर में हैं, तो कम से कम 7 स्टेट है, 7 स्टेट में ऑफिस कायम कर सकते हैं कि नहीं। मुस्लिम आयोग के ऑफिस होता कम से किसी भी मदरसे के पढ़े लिखे, स्कूल बैकग्राउंड के पढ़े लिखे एक की तो नौकरी तो लग जाएगी। और फिर जो हर स्टेट के अंदर इतना जिला है, जिले पैमाने मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से जनगणना हो, बयानात हो, स्टेटमेंट उसको जमा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, करने की जरूरत तो जरूर है, लेकिन कर नहीं रहे ना। इसलिए क्या कहते ये कि एक आदमी हर गांव में, क्या हमारे भोकरा में कोई गया है, इरदाना का आदमी, वो डरोल का आदमी आया था, कहाँ गया मुस्लिम आयोग का आदमी उसके पीछे घूमने के लिए। ये सब कलाम फाजी जो अरबी भाषा का कहते हैं, लेकिन वो जमीनी सतह पे कुछ काम नहीं हो रहा है। अलबत्ता मैं ये कह रहा था कि कम से कम सद्दो कारिबू के तहत बहुत खसारे से बचने के लिए कम खसारे को हम लोग बर्दाश्त करें। अगर गांव का इमाम अगर वहीं पे पढ़ाते हैं, उनके पास फितरे का सारे रिकॉर्ड होता है, वो चाहे तो आंख बंद करके सारी को रिकॉर्ड लिख ले, और जो आने वाले हैं उनसे मिले, पहली फुर्सत में साहब का नाम दर्ज करवा दे। बाकी जमीन जत्था का मामला होगा तो हर के दरवाजे पे जाए, आधा काम हुआ रहेगा, आधा कन्फर्मेशन करते हुए चले जाएंगे। तो जी, इस जी, तरह से बिल्कुल कुछ सही। साथ जब तक नहीं दे। बिल्कुल बोले। सही बात आपने बोला, आप ये बिल्कुल सही बात है। फितरा और तनख्वाह के टाइम में लिस्ट होता है वो लोगों के पास, वो अगर वो करेगा, रह गया अकाउंट और जमीन जथा, ये घर घर जाके इंफॉर्मेशन उनको पूछो। मेन चीज अच्छा से बताना पड़ेगा, क्योंकि महिला लोगों को अच्छा से मालूम नहीं जी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मोहम्मद जलाल साहब बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी जलाल भाई दुबई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, यही बात तो तकरीबन 2-4 महीना पहले जो मीटिंग हुई थी मैं दोहराया था, तो आप ही ने खुद कहा था रहने दीजिए, सब समझ गया। देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है, कितना बड़ा धोखा हो रहा है, वो सोचिए समझिए आप। तो यहाँ पे हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं कि सब समझ जाएंगे, ये बताइए। हैं बात है नहीं, हमारे वही साथ 2-4 लोग जुड़े रहते हैं, जो वहां पे काम करने वाले एक लोग भी नहीं जुड़ते हैं, तो हम तो यही ना वही कहेंगे कि जितने लोग थे वो समझ गए कि हम पूरे दुनिया का ठेका ले लेंगे। वही बात। नहीं, ठेका वो लेने का बात नहीं है ठीका कासिम ठीका मुल्ला। लेने की बात नहीं शेख, ठीका लेने की बात नहीं। मैं समझता हूँ कम से कम एक बात को अगर 2-3 बार दोहराया जाए तो जो मेन लीडर होता है उनको समझ में आए जो बंदा क्या कह रहा है। मैंने यही कहा था शेख, अपने तरफ से कोई अपना जो कमेटी है आपका आयोग की तरफ से कुछ होना ही चाहिए लाजिम 100%। आप मीटिंग में रखे, आप संगत में जो आप काठमांडू में एक मीटिंग करते उसमें आप सरकार के सामने रखे पेश करें। तो आपने कहा था रहने दीजिए, सब समझ गए। ऐसा नहीं होता है, कभी कभी 1-2 बार को तो 3 बार मैंने कहा था कि रहने दीजिए, सब समझ गए। शेख कासिम अभी बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। हर सवाल का जवाब नहीं होता है, बोलने वाले को बोलने दीजिए। खलास जितने भी इमोशन होंगे वो निकालने दीजिए, बात रखने अच्छा दीजिए। अच्छा, चले और चले। मुनासिब जी तो हाँ यही बोले बात है। बोले अभी बोले। अभी जैसे मक्का से कह रहे थे शेख साहब, हबीब रहमान जो भी नाम है, वो बहुत जैसे इंपॉर्टेंट बात कर। अभी कितना बड़ा धोखा हो रहा है बताइए। गांव का जो लेडीज होती है वो समझदार नहीं होता है, बोलता है क्यों आ गए इतना आदमी, वो शॉर्टकट में लिपट लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। गांव के जो मदरसा का जो लीडर है उनको आपके तरफ से या जमात अहले हदीस की तरफ से ऐसा परमिशन या कुछ सिस्टम के मुताबिक आदमी को बंदे के भेजे, घर घर जाके समझावे, अपने अपने गाँव में जाके।
तो ये बेहतर रहेगा। अभी बहुत बड़ा जुलूम हो रहा है, सितम हो रहा है। देखो वही कह रहे थे, हमें वही बात बोला था, क्या मैं विदेश में हूँ तो मेरा नाम नहीं, नहीं आपका भी नाम आएगा, सबका आएगा। देखो अभी जैसे बोल रहे हैं कि नहीं जो विदेश में है उनको छोड़ दीजिए, क्यों छोड़ दे भैया? हम उस गाँव हम वतन के आदमी नहीं है? हम उस प्यारा वतन नेपाल के आदमी नहीं है? जी 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 बिल्कुल। इसलिए वो वादा अध्यक्ष जो भी अभी टाइम के मुताबिक जो अभी पौधा मिला है अल्लाह के हुक्म से, वो पौधा के ऊपर जैसे कुछ अमल किया जाए, उनको ऊपर गांव के लिए कुछ काम किया जाए, चाहे गैर हो चाहे गैर मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो। तो ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको नाम एड होना चाहिए। आज जो ऐसा कर रहा है कि रहने दीजिए, उनको ऊपर केस किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसा क्यों बोल रहा है वो, जो छोड़ दिया जाए। इंशाल्लाह बहरे के अब ये आप कह रहे हैं, आप अपनी अमली तौर पे क्या राय देते हैं ये राय दीजिए। वो होना तो चाहिए, हम भी कह रहे हैं, वो भी कह, दीगर मशाइख और उलमा ने भी बताया है। आप अपने गांव के हद तक क्या कर सकते हैं, बताओ, शुरू कीजिए अपने गांव से, चलिए बताइए। मैं तो खरा अपना अलातुल में फोन करूंगा, आप क्या करना चाह रहे हैं? गांव के यही ऐसे कि मैं इंशाल्लाह मैं भी बात किया हूँ, करता हूँ कि गांव के जो मैं लीडरान है, चाहे मदरसा खजानती सेक्रेटरी, उनसे रब्ता किया जाए। वो गांव घर घर जाके, गांव के तो ही है, घर घर जाके ये जो 4 लड़के के लेके समझाया जाए। वो जो लिस्ट आपने निकाला है, उम्मीद करता हूँ कि वो लोग भी प्रिंट करके निकाल लिए होंगे इंशाल्लाह, मिठियानी से, जलेश्वर से, तो उनको पेश किया जाए गांव घर घर अपना गांव के घर घर जाके इस तरीके से लिखाना जरूरी है। और सबसे मेन बात है कि जो बंदा आए मझौड़ा में चाहे कोई भी गांव में, उनसे पहले सेक्रेटरी या मौलाना से जो बड़े बड़े आदमी, उनसे रब्ता किया जाए। वो चुपके सही आपने कहा कि सरकारी नौकरी पेड कर देंगे 10 मिनट में, बस साइन कर देंगे, हो गया मेरा काम। ऐसा नहीं होता है, ऐसा काम करके ही जाना पड़ेगा। उसको साथ जलाल उसके साहब साथ में आदमी सुनिए शेख क्या करें। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो मजहूल जानते हैं जुमला मजहूल, यानी मतलब किया जाए, लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए तो सब लोग बोलते हैं किया जाए, होना चाहिए। आपके बारे में पूछ रहे थे कि आप क्या कर सकते हैं। आप नहीं कहिए कि जो है किया जाए या लिखा जाए या इस तरह होना चाहिए। आप फोन कीजिए, आप लोगों को लगाइए, कहिए हम करेंगे, हम फोन करेंगे, हम लगाएंगे, हम मुकर्रर करेंगे, इस तरह से कहे ना। किया जाए वाली तो सब लोग कहते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, वो करने वाले नहीं है ना। करने वाले को जो है करने की बात कीजिए कि हम क्या कर सकते हैं। जी बेशक, बहुत अच्छा बात किया आपने। जी यही मैं कहा कि अभी जो है राय मशवरा देने के बजाय आप अमली तौर पे, जैसे हमको क्या काम देते हैं ये बताइए। शेख जलाल साहब आप क्या काम कर सकते हैं आप बताइए। शेख अब्दुल रहीम साहब, अगर 8 ही आदमी हो जाए ना तो खलास हम पूरे काया पलट देंगे। पहले वो सबको किया जाए वाला छोड़ा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जलालुद्दीन चचा हम लोग लगेगा, हमारे गांव का है, मछुआरा का है, और अजीम भी है मेरे गांव का। तो माशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के मीटिंग वगैरह और इस तरह के जोम वगैरह में आए। तो इंशाल्लाह हम अपने गांव के जिम्मे लेते हैं, और इंशाल्लाह जितने भी फतवा वगैरह होंगे या जहां तक हो सके इंशाल्लाह हम अपने गांव में इस तरह की चीज फैलाएंगे, जनगणना के बारे में कि क्या है नहीं है। इंशाल्लाह इस तरह का जो लिस्ट वगैरह होगा तो वो चीज बताएंगे, और जो खुतबा वगैरह देंगे मुझे साहब, तो उसमें भी ये चीज रखे जाएंगे। खुतबा के बाद में 2-4 मिनट के लिए कहेंगे किसके बारे में बताए, खवातीन हो गया या जो मर्द के लिए। इंशाल्लाह हम लोग अपने गांव के लिए जरूर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप पहले ये पता करें कि आपके यहाँ जनगणना हुआ या नहीं, अभी पहला मरहला हुआ या नहीं हुआ। बराबर फोन करता हूँ शेख, अभी तक नहीं हुआ हमारे गांव में, अभी तक नहीं गया, अभी तक हमारे गांव में नहीं गया है, नहीं हुआ है। अच्छा, जब नहीं गया है तो वहाँ के लोगों को पहले आप लोग चौकन्ना करें। जो सेक्रेटरी है, खजांची है, जो उलमा है ना, जो मुदर्रिसीन है, उन लोगों को पहले चौकन्ना करें। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको चौकन्ना करके रखेंगे। जैसे ही वो लोग गाँव में घुसे तो आप लोग उनका साथ पकड़ लीजिए, समझ रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे वो लोग तो खजांची साहब को बोलिए कि सबको 500 रुपया करके दो 4-5 आदमी को, वो लोग उनके साथ कटेंगे पूरे दिन इंशाल्लाह। समझ रहे हैं। चौकन्ना रहने से पहले आज से काम शुरू कर दें। आज जुमा का शुभ दिन है, आज ही बल्कि फोन करें सेक्रेटरी को, खजांची को, इमाम को, दोस्त को, और वहाँ जो हर अभी 8 आदमी 8 गांव में बेदारी आ जाएगी। इसलिए जो है वो क्या तो मझौरा के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए, जिनमें से हमारे शकील साहब हुए और हमारे क्या नाम है इनका, ये अजीम साहब हुए और हमारे जलाल भाई। ये 3 आदमी हुए। अपने गांव के बारे में आप लोग मुकम्मल खबर रखें। जैसे ही वो लोग आए तो मुकम्मल तरीके से लिखाएं। जो शकील साहब के पास ये पूरा फॉर्मेट मौजूद है, जो पूरा दरखास्त है वो पूरा मौजूद है। इन लोगों के पास, सबके पास भेज दीजिए आप किस चीज को कहाँ पे लिखाना है। ये अपने गाँव में भी भेज दें आप लोग उलमा-ए-किराम के पास,
समझ रहे हैं, और बोले कि जैसे ही वो लोग आए तो इस खाने में इस तरह से लिखाना है, समझ रहे, मुकम्मल तफसीरात लिखाना, बात कीजिए आप लोग उसके ऊपर। और हम भी और शेख अब्दुल रहीम साहब हम अपने गाँव के जिम्मेदार हैं, ठाड़ी के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ इंशाअल्लाह मैं अकमल से पूछता हूँ और बाकी लोगों से पूछ करके हम लोग जो है इसके बारे में मुकम्मल जानकारी देते हैं। इसी तरह से अमीरुल साहब आप जो है मुड़ीबा के बारे में मुकम्मल जानकारी हमको दीजिएगा आने वाले हफ्ते को, कि आपके यहाँ लोग आए नहीं आए और किस तरह से लिखा नहीं लिखा, 2-4 घर से पूछिए कि वहाँ पे भी इस तरह से लिखा, बाहर वाले क्या जो था, बाहर जो आए हुए लोग उनका नाम दर्ज किया या नहीं किया, ये सारी चीजें आपको भी पूछनी है। इसी तरह से हम अब्दुल कलाम साहब आप भी जो है उनको लिखें अपने गांव में और सबको पूछे कि अगर आया या नहीं आया, अगर आ गया है तो बाहर वाले का नाम लिखा या नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा है तो ऐसे लोगों का नाम निकाल करके ऐसे सुपरवाइजरों का और उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे साथ कलीम इकरा स्कूल से जुड़े हुए हैं माशाअल्लाह। जी कलीम साहब। शेख इसमें एक और नया बंदा जुड़ गया है अशरफ राइन का, कि वो भी साहब आप ही के इलाका से आज आया पहली बार। अच्छा ठीक है जी कलीम साहब, बच्चे वगैरह तो हैं लेकिन आज शुरू में लाए नहीं बच्चे को, आप लोग लाइए, कभी कभी कुरान वगैरह या कभी कभी नज़म वगैरह हम लोग को पढ़वाएंगे इंशाल्लाह, अरबी में, इंग्लिश में, नेपाली में, हिंदी में, अगर तकरीर याद हो तो एक बच्चों को दीजिएगा, कभी कभी बीच में हम लोग टाइम दे दिया करेंगे। जुड़ते हैं तो आप वहाँ रहे। और मोहम्मद का क्या हाल है, चला गया क्या यहीं पे अभी? चला गया। अच्छा चलिए ठीक है इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों को ले आइए। और जनगणना के ताल्लुक से आपके यहाँ क्या हो रहा है, जनकपुर में मुसलमानों का नाम कैसे लिखा जा रहा है, बाहर वालों को लिखा जा रहा है नहीं लिखा जा रहा है, थोड़ा उस तफसील को आप आने वाले जुमे को जरूर बताइएगा। शेख अभी वही मझौरा, आज मझौरे गए थे, शेख अब्दुल अजीज साहब से गुफ्तगू हुआ, यही के इसी के बारे में क्या? अच्छा अब्दुल अजीज साहब के साथ मशवरा हुआ कि भाई हमको जमीयत अहले हदीस का तो हर नगर पालिका में तो मेंबर है, हाँ जी, अगर हम लोग बैठ के उसी मेंबर को कम से कम ये जनगणना तो खत्म हो गया, अब दूसरी चरण का जो जनगणना आने वाले है, कम से कम जब तक हाकिम बैठे, जब तक हमारे जिम्मेदार आदमी वहाँ बैठे, एक आदमी न छूटना चाहिए, सत्य तथ्य जो है वो लिखावे। तो उसी के बारे में हम लोग आज गौरव खौस और बात विचार किए, मझौरा गए थे आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह तो चीज है, मैं कल से 4 दिन में हम लोग बैठ के हर नगर पालिका में जो जी जमीयत के जितने भी लोग हैं, शेख अब्दुल अजीज साहब खास तौर से मैं उनको तो पहले उनके पर्सनल पे भेजता ही हूँ कि भाई ये सारे काम है, लेकिन वो लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कोई भी एक आदमी भी नहीं जुड़ पाता है जमीयत की तरफ से। क्या हम लोग उसको मैसेज दें, क्या बताएं, कैसे करना नहीं करना, भाई आप लोग जुड़ेंगे साथ में रहेंगे तब तो कोई काम होगा। एक बात मैं कह रहा हूँ, जैसे नेपाल का जो अहले हदीस का जो नाजिम है, ये जैसे वो नाजिम है, वो क्या करते हैं, हमारे कहने का मतलब जैसे अभी जनगणना चल रहा है उसके ऊपर कुछ बात नहीं करते या कुछ भी नहीं करते, या क्या मुसलमानों के अंदर में क्या होना चाहिए? अब इतने दूर चले गए ना, अब इतने दूर चले गए तो जो कुछ भी हो रहा है सब खत्म कर देंगे आप, रहने दीजिए उनको, जो सो रहा है उनको सोने दीजिए, समझ रहे हैं? वो लोग अभी नाजिम पता नहीं किस किस्म के हैं, अभी इलेक्शन होगा सब जाके नाजिम बनेंगे, वो लोग कुछ भी नहीं है, बस ऐसा इंटरेस्ट नहीं लेता है। काम ही नहीं करेंगे नेपाल के अंदर में, कुछ काम ही नहीं करेंगे मुसलमानों के लिए, तो क्या फायदा है हमको मुसलमानों के लिए ओहदा लेकर, क्या फायदा है? कोई बहरहाल यहाँ से ये आवाज मत उठाइए, इंशाल्लाह उसके अलग से बात होंगी। हमारे साथ शेख बशीर हबीब मदनी साहब जुड़े हुए हैं माशाल्लाह, आज के सदर यही हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म होने के करीब जब आया तब हमारे साथ जुड़े हैं। फिर भी आपका शुक्रिया, तबर्रुक के हैसियत से ही कम से कम आप आए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपको सेहतमंद रखे। आखिर में मैं चाहूंगा कि आप जो है जनगणना के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से आपको मैं सुनना चाह रहा था, इससे पहले भी सुना, बहुत अच्छा लगा, आपको यूट्यूब पे भी मैं डाला, इसकी इफादियत के पेश नज़र मैंने आपको फिर कहा कि कुछ उस ताल्लुक से बताएं, बड़े अच्छे मिसालात के जरिए से आपने समझाया था और बड़ी खुशी लगी थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इस तरह से अगर हमारे उलमाए किराम, बुद्धिजीवी लोग, सियासी लोग आवाज़ उठाएंगे, लोगों को समझाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर उनके और बाकी जो लोग उनको समझ में आएगी और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम होगा। तो इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर आप जो है हमें इरशाद फरमाएं और लोगों को जागरूक करें इस ताल्लुक से। बाद में कॉल करो, ठीक है? अपनी आवाज़ खोल लें शेख, पहले अपनी आवाज़ खोल लें। हेलो आवाज? जी जी माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह।
मोहतरम सामीन किराम व नाज़रीन किराम, आप लोग तो हमारे पुराने हैं, अपने हैं, जानते हैं हमको भी, लेकिन आप लोगों से सीख करके हम लोग अपने बेलहा को भी कुछ उठाने की कोशिश किए। और उस मीटिंग में लगा हुआ था 3 जुमा से, चाहते हैं कि उसको भी खड़ा कर दें। हम लोग का टाइम अब रह गया है कम, बच्चे लोगों को खड़ा कर देंगे ना, चलने लगेगा तो दौड़ना भी सीख जाएगा। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह तमाम मसाइल को हल करे। और आमीन। शेख कासिम साहब ने दावत दी और इनके दावत पर मैं रोजा भी रखता हूँ, नफली रोजा तो तोड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं, नफली फकत नफली इनके दावत पर। तो जनगणना के बारे में मैं अपना एक टूटी फूटी जुबान में जो कुछ आया, इसी मकसद हयात के टीम से सीख करके, वो पहले एक्स मंत्री जो कहते हैं, साबिक मंत्री जाकिर हुसैन साहब या जाकिर साहब थे, उनसे जो कुछ सीखा था वो मैंने बयान किया। कुछ लोग इख्तलाफ किए, लेकिन मौलवी अब्दुल मजीद साहब काठमांडू में कोई कमेटी में है, उन लोगों भी नहीं वही बात की, और आज कोई इसका इस्लामी स्कॉलर है, उन्हीं लोगों ने बात की। तो कहना यह है मेरे साथियों कि एक होता है मसाइल, मसला का जमा है मसाइल, और हमारे गांव में, हमारे इलाका में, हमारे जिला में मसला की कमी नहीं, मसला ही मसला है, टेंशन ही टेंशन है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इस मसला को जमा कहते हैं मसाइल। और ये मसाइल जब तक आप हुकूमत के पास नहीं पहुंचाएंगे एक तराजू पे करके, तो हुकूमत दूसरे तराजू पर वसाइल नहीं रखेगा। यानी आप मसाइल देंगे तब हुकूमत वसाइल पैदा करेगा और आपके मसाइल को हल करेगा। इसमें क्या होता है, हम लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो देखते हैं तो कहते हैं कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त, जिसके लिए जनगणना हो रहा है सब खामोश है, और जो लोग बाहर में हैं बहुत चिंतित हैं, कोशिश कर रहे हैं जगाने के लिए। अल्लाह ताला सबको जगने की तौफीक अता फरमाए। बहुत आदमी तो जानते नहीं है कि हमें आप ही लोगों के मकसद हयात के यूट्यूब पे, ये बात नहीं है कि मैं नहीं आता हूं तो आप लोगों का नहीं सुनता हूं, यूट्यूब ही पे आप लोगों के गुज़श्ता जुमा को देखा था कि 3 चरण में अधिकारी आएंगे। पहले चरण में घर का नंबर देंगे, दूसरे चरण में घर के लोगों का अफराद का नाम लिखेंगे, और तीसरे चरण में जनगणना होगा। तो ये सब हम लोग आज तक सीखते नहीं हैं। मेरे मोहतरम, क्या होता है, हम लोग कोई बात किसी चीज कीजिए तो कहिए हमको मालूम है, हम जानते हैं, सब आदमी कहेगा आपको कोई बात कहिए तो हम जानते हैं, लेकिन समझते कोई नहीं है। अगर समझते तो अफगानिस्तान में जहाज के पंखी पर चढ़कर सफर नहीं करते हम लोग। दुनिया हंसती है दुनिया में, हम लोग हर बात में कहते हैं हम समझते हैं, हमको मालूम है, लेकिन समझते नहीं है। इसलिए मौलवी कासिम साहब, ये अपने कौम को सुधारने की जहां तक बात है, इसमें मेहनत बहुत है, परेशानी होगी। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि पहले नबी करीम जितने भी नबी आए सब बकरी क्यों चढ़ाए, तो उसमें हिकमत बयान करते हैं कि बकरी को इधर कीजिएगा तो उधर भागेगा, और उधर से रगेटेगा तो उधर भागेगा। उसी तरह ये कौम है, इसको इधर से कीजिएगा तो उधर भागेगा। तो सब्र की जरूरत है, हम लोग मेहनत करें, ये हमारे ही कौम के हैं और इसी कौम से हम भी हैं, इसलिए सुधारें। और इंशाअल्लाह मैं देखता हूं, पहले तो हम लोगों को पता भी नहीं चलता था जनगणना कब है, अब तो पता चलने लगा है जनगणना आने वाला है। ये व्हाट्सएप के जरिए हम लोग बोल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये जरिए अपने बच्चों के भविष्य को सेव करने के लिए, अपने मसाइल के हल को ढूंढने के लिए वसाइल की जरूरत जो हुकूमत देती है, वो आपको मसाइल पहले बयान करना पड़ेगा, तब आपके तरफ वसाइल आएंगे। और मैं अपनी बात यही बात करके खत्म करता हूं, क्योंकि मुझको बेलहा वाला जुम में भी जाना है। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप लोगों को इस मेहनत को कबूल फरमाए और नामाए अमाल आखिरत में जखीरा के तौर पे रखे। हम अगर कभी नहीं आते हैं तो ये मत समझिएगा कि हम आपसे दूर हैं, हम आप ही के पास हैं, हम आपके साथ हैं। जिस रोज हाजिर नहीं होते हैं उस रोज यूट्यूब पे जरूर सुन लेते हैं, और आप लोगों को मैं क्या कहूँ, मुझको ही फायदा होता है ज्यादा, मैं ही उससे ज्यादा फायदा हासिल करता हूँ। इसी तरह तमाम जो लोग भी सुनेंगे सबको फायदा होगा। अल्लाह ताला आप लोगों को नेमत अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी ये मुख्तसर सी चंद सी बात है माशाल्लाह दिल को छू जाती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और माशाल्लाह अभी आप जो गांव के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप सबको एक प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मदरसा इतने दिनों से आप लोग जो किसी नुक्ते नज़र निगाह पे नहीं पहुंच पाया था, आप उसको एक एक सरहद दे रहे हैं और उसको एक क्या कहते हैं कि उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। आज भी वो जो उसी सिलसिले के कड़ी है जो जूम मीटिंग है उसके अंदर भी आप लोग कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कबूल फरमाए और सारे बिलहा वालों को आमीन। तौफीक दे कि उस मदरसे को अच्छे से चलाने की कोशिश करें। जी, हमें से आमीन किसी भाई वाले। के पास कोई एतराज हो तो ठीक है, नहीं तो शेख अब्दुल रहीम साहब दुआया कलिमात के साथ इस मजलिस का इख्तिताम करें। जी शेख, लगता है किसी के पास कोई अब सवाल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते को हम लोग फिर मिलेंगे। आप जो है थोड़ा दुआया कलिमात के साथ इसका अपना इख्तिताम करें। शेख अब बशीर से मैं गुजारिश करना चाह रहा था, सिरहा की जमीयत के ताल्लुक से मैं कहा कि जैसे धनुषा में नशीद है उस तरह से आप शेख आइए, आप हमारे अमीर हैं, सिरहा को भी नशीद कीजिए। लेकिन सिरहा में बड़े बड़े चगादरा सब है, सिर्फ मनसब के तकसीम में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और अभी जब इलेक्शन होने वाला है तो हर हर गांव में जाके मीटिंग करते हैं। तो मैं कहा कि आप शेख आगे आइए, हम आपके साथ हैं। जब देखा सिरहा के सब लोग मध्य पड़े हुए हैं, कोई बोलने वाले नहीं, तो मैंने कहा चलो कहीं भी नेकी का काम किया जाए। तो धनुषा से जुड़ा हूँ और हमारा तो दीन धनुषा से सिरहा तो कहता ही नहीं है, पूरी दुनिया के मुसलमान एक है। अलबत्ता शेख ने बड़ी खुशखबरी बताई, मेरी आवाज जा रही है। तो जमात जमीयत मदारिस और मराकिज के तई मैं अपने दिल में एक दर्द रखता हूँ। अगर मुमकिन हो सके तो हमें भी ज्वाइन कर लें, ताकि शेख सिरहा की फलाह बहबूद के ताल्लुक से हम भी कुछ नेकी के का हिस्सेदार बन जाएं और नेकी के काम में शरीक हों, अगर हो सके तो। और अगर के आपके गाँव के साथ खास है तो कोई बात नहीं है। ये मेरी आवाज पहुंचानी थी शेख बशीर हबीब तक। ठीक है, शायद उनके गांव का ही खास है, शायद उनका, शायद वो सुन रहे हो तो जवाब दें। निकल गए वो। चलिए अशरफ राइन साहब जुड़े हैं आज, पहली मर्तबा शायद कह रहे थे कोई, तो कुछ कहना चाहेंगे अशरफ साहब? तो अपनी आवाज खोल लें। चलिए कोई बात नहीं, वो शायद हमें नहीं सुन पा रहे हैं। जी शेख अब्दुल रहीम साहब। जी बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जिस तरह हम लोग यहाँ मर्दमशुमारी के ज़िम्मे में परेशान हैं, उसके बारे में परेशान हैं, तो हमें उखरवी मर्दमशुमारी के बारे में भी फिक्र करना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ जो मर्दमशुमारी होगी तो कौन मुआहिद है, कौन मुस्लिम है, कौन गैर मुस्लिम है, हम लोग उसके भी जिम्मेदार हैं। और जहाँ जमीयत माशाअल्लाह काम कर रही है दावती काम, और जमीयत के अलावा भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे टीम, बहुत सारे जो है मरकज काम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया के साथ साथ उखरवी तौर पे भी हम लोग काम करें। और बहुत सारे भाई मुस्लिम होने के बावजूद कलमा से महरूम है, तौहीद से महरूम है, नमाज से महरूम है, तो क्यों न ये भी साथ साथ किया जाए। एक चीज को, एक पहलू को लेके चलते हैं, उसी के साथ साथ खास तौर से जमा करें। जैसे जहेज के इंसदाद पे जो है काम कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ लोगों को हम बुलाएं, लोगों को मस्जिद में लाएं, लोगों को तौहीद भी जो है बतलाएं, लोगों को नमाज के बारे में भी बतलाएं। और ये अहम चीज है, दुनिया से कहीं ज्यादा आखिरत जो है जरूरत है। तो मैं ये कहूंगा कि उसके लिए जो हम लोग जिद्दोजहद करें, साथ ही साथ करें, इसलिए कि हर पहलू पे वक्त की जरूरत है। तो ऐसा ना हो कि ज्यादा वक्त एक ही चीज में हम जो है गुजार दें और दूसरी चीज छूट जाए। तो तौहीद वगैरह भी लोगों को बतलाए कि बहुत सारे लोग शिर्क को बिदात है, या जो काम करें और नमाज के लिए खास तौर से हर गांव में जाते हैं तो मस्जिद के अंदर मर्दमशुमारी करें, मस्जिद के अंदर देखें कि कितने लोग हैं, आदत क्या है यहाँ की, और नमाजी कितने हैं। तो उस पर भी थोड़ी मेहनत करें, खास तौर से जो है जो टीम वगैरह या जो भी जो है दावती काम कर रहे हैं उनको ध्यान होना चाहिए। दूसरी चीज, जैसा कि अजीम कासिम ने कहा है कि मरकज के तहत बतलाइए कुछ जो है। मरकज में अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं
कुछ बच्चे जो है मेला ठेला की वजह से ताखिर किए हैं, वो भी इंशाअल्लाह कल परसों तक आ जाएंगे। और इसी तरह से बासलाहियत असातिज़ा वगैरह की बहाली भी पिछले साल के बनिस्बत इस साल बेहतरीन असातिज़ा की बहाली हुई है। 2 मदनी का इजाफा हुआ है, शेख रिजवान साहब और शेख हबीबुल्लाह साहब। तो इस तरह से जो है तालीम भी इस साल बहुत बेहतरीन हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अमीर चुना है वो भी बासलाहियत हैं, उनकी निगाह हर तरफ है और हर चीज को बखूबी वो अंजाम दे रहे हैं और चाहते हैं कि पिछले साल के बनिस्बत इस साल कहीं ज्यादा अच्छी तालीम हो। और उसका जो है रिजल्ट अभी 2 ही हफ्ते के अंदर समझें कि बेहतरीन जो है रिजल्ट आया है और मजीद जो है बेहतरीन की हम उम्मीद करते हैं। इसी तरह से नेपाली तालीम के लिए भी एक और जो है मैंने कहा था कि आम तौर पे हम ऐसा सोचते हैं कि असर के बाद भी एक इजाफी घंटी हो और उसके लिए एक बासलाहियत मुअल्लिम जो मास्टर हैं तो उनको जो है उनकी बहाली के बारे में बातचीत हो गई है तकरीबन, और वो क्लास में भी पढ़ाएंगे ताकि बच्चों को लेटर वगैरह लिखा जाए, जो कहते हैं निवेदन वगैरह भी सिखाएंगे, जुबान भी सिखाएंगे ताकि हम जो है दूसरे इंशाअल्लाह हमारे मरकज या जामिअतुल फारूक अल इस्लामिया से फारिग होंगे तो निवेदन कम से कम अपना जो है अपनी बात गवर्नमेंट के सामने आसानी के साथ रख पाएंगे। हम इस तौर पे जो है मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी मेहनत कर रहे हैं कि वो लोग किसी भी स्कूल से बाज़ाब्ता जो है इम्तिहान दें और आगे जो है तालीम जारी रखना चाहें तो मैट्रिक वगैरह SLC वगैरह का इम्तिहान दे करके असरी तालीम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की भी जो है हम मेहनत कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारी चीजों की जो है इस्लाह हो गई है और बहुत ही अच्छे तौर पे जो है अंजाम दिया रहा है। बस आप लोगों से दुआ की दरखास्त है और अहबाब से ये कहना चाहूंगा कि आप जाइए, जा करके देखिए, सुनी सुनाई बातों से बेहतर है कि आपके नजदीक में है। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम तालीमी मियार को देखिए। और कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो हमारे बच्चे गए हैं तो उसमें एक जमात आगे जो है उसका दाखिला हुआ है। तो ये इस तरह की जो है वहां पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन ब दिन जो है उसमें जो है मजीद इस्तेहकाम की सूरत जो है यह इस्तेहकाम हो रहा है। तो ये चीज जो है आप लोगों के लिए खुशी की बात है। बस ये है कि हत्तल इम्कान आप सोचें, आप अपने जो है अपने ये ना सोचें मार्केट के अंदर जो है लोग मार्केटिंग करते हैं। मदरसे के अंदर भी कहाँ 500 रुपया कम लगता है बच्चे को, वहीं कहाँ फ्री में होता है वही। भाई आप अपने बच्चे की जिंदगी को संवारना चाहते हैं, बच्चे को तालीम और तरबियत देना चाहते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से जो है देखें, सोचें। हमारे इलाका में उलमा की कमी नहीं है, लेकिन हमारे इलाके में तरबियत की जरूरत है। आलिम उलमा है लेकिन उनके पास भी तरबियत की कमी है। आप देखिए तो बदकलामी बहुत सारी चीजों को पाएंगे। होती है तालीम के साथ तरबियत की जरूरत इस बात की है कि अपने बच्चों को देखिए कि भविष्य कहाँ है, मुस्तकबल जो है आप अपने बच्चों को जहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो आपके बच्चे किस तरह के निकलेंगे। आप पैसे का मियार न सोचें कि कहाँ पे कम पैसा लगता है, कहाँ पे जो है बगैर पैसे के पढ़ाई होती है। तो इसका तवाजुन करेंगे तो आप अपने बच्चे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के संवारने के लिए इस चीज को नहीं देखा जाता है, बल्कि आपको वहाँ की तालीम को देखना पड़ेगा, वहाँ की तरबियत को देखना पड़ेगा। और इस तरह से जो है अपने बच्चे को यही उसके अलावा भी देख लीजिए कि बहुत सारे लोग उसी एक ही घर के अंदर 2 बच्चे हैं, एक को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं तो उस पे जो है 6,000, 7,000, 5,000 से ज्यादा महीना खर्च करते हैं। और वही बच्चे अगर जो है मदरसे में आते हैं तो 2,000, 2,500 रुपये जो है गिना गुजरता है। सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा है। तो जो बच्चे जिस पे आप जो है 6,000, 7,000 खर्च करते हैं, अगर 8 साल 10 साल के बाद जो है वो बच्चा तालीम को
छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? न वो आपके लिए दुआ कर सकता है, न वो आपको कोई अच्छी तालीम दे सकता है, न वो आपके लिए जन्नत का बायस हो सकता है, न आपके लिए जो है मगफिरत का बायस हो सकता है, कुछ भी नहीं। दुनियावी एतवार से भी जो है वो वैसे ही रहेगा जिस तरह से एक आदमी जो है, जाहिल आदमी आता है बाहर और कमाता है, उसी तरह से कमाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर दीनी तालीम हासिल करता है तो आपके लिए कम से कम, अगर वो चौथी में भी छोड़ देता है, तीसरी में भी छोड़ देता है, दूसरी में भी छोड़ देता है, तो नहीं कुछ तो आपको, आपके लिए दुआ करेगा, आपके घर की इस्लाह करेगा, आपको नेकी की दावत देगा, आपके लिए जरिया नजात मिलेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा कभी वो भूखा नहीं रह सकता है, कभी वो भूखा नहीं रह सकता है, कभी वो दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला सकता है। कहीं पे इमामत कर लेगा, कहीं पे खिताबत कर लेगा, कहीं पे वो मुदर्रिस बन जाएगा, उसकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। उसके लिए आप जो है अपने हाथ को रोक लेते हैं, अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को बंद कर लेते हैं, उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जबकि आप खर्च करेंगे तो उसका भी आपको अजर सवाब मिलेगा। तो दिल कुशादा कीजिए और दीनी तालीम की तरफ माइल होइए। और आपके इलाके के अंदर एक ऐसा मरकज है जहाँ पे अच्छी तालीम होती है, और उसके अंदर जो है आप अपने बच्चों को भेजिए, तालीम दीजिए। यही जो है मेरी दुआ है, यही मेरी चाहत है, और यही मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही काम करने और सही बात बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन के खिदमत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हक व बातिल हमें पहचानने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे दिलों से बुग़्ज़ व हसद को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आपस के अंदर मेल जोल पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को जोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे तंगी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे राह फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की कामयाबी अता फरमा। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खात्मा हो। इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इसके साथ ही इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।